Now this is the part of the signature going up, coming down, and again sinking down. So when I put up the graph here, as we said, it is the study of the graph of your life. So ये x-axis है and this is the y-axis. When we see carefully, pen is going up, coming, taking a turn and coming back and going down. So when we see the overall growth, अगर आप ध्यान से देखेंगे overall growth क्या है, कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ से पेन स्टार्ट हुआ था, here and from there, भले it is going up, even though it is going up, final end कहाँ हो रहा है, that we are supposed to observe it. So from where it started and where it is ending, the final place where it is ending, when you see the overall graph, so it is from top, it is coming down. From top, it is going down. From top, it is going down. So here the graph is, the person is going down. So these are the various parameters which we can identify through the science called as graphology. ये signature जो था एक student का था. This student was studying very nicely in all the exams and all. She used to score very nicely. But at the time of the exam, she used to get fever. जब भी exam आएगा तो उसको fever आएगा. And then she has to take medicine, visit a doctor, take injection, and then from there she used to go for the exam. She was scoring 80 plus, 90 plus. पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. लेकिन exam के दिन ही उसको सबसे ज़्यादा fever आता था. And then suddenly morning में she used to get this fever and then medication lena and then going for the exam. Then this was happening from last few years. And medication हमेशा लेने का and then हर exam में ये होता रहता था. So this case came to me. So what I did, I understood this signature में challenge है. Now see carefully, listen carefully the signature. The person is going up. So this child prepares nicely for the exam. बहुत अच्छी तरह से अपने आप को prepare करता है. और जिस दिन the day है, जिस दिन the person is supposed to write the exam, वहां पे एक फीलिंग आ जाता है कि मैं लिख नहीं पाऊंगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, समथिंग विल गो रॉन्ग एंड शी लूजेस द कॉन्फिडेंस देयर, टेक्स अ यू टर्न, कम्स बैक एंड अगेन वो लूज करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सिंक होता है. तो जब भी एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाता है उसका सेल्फ एस्टीम नीचे जाता है, दिस बॉडी विल अट्रैक्ट डिसीज. Whenever a person's self-esteem goes down, self-confidence goes down, the body becomes prone to डिसीजेस. तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फ एस्टीम डाउन हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया. बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायरस तो होते ही है. तो जब भी सेल्फ एस्टीम डाउन होगा, इम्यून सिस्टम सरेंडर होगा एंड द वायरस विल अटैक एंड फीवर आ जाता है. आई डिड नथिंग माय फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने उसको सिर्फ बोला अपना नाम लिखो VS9 एंड देन जस्ट अंडरलाइन इट, remove this pattern, just underline it and let the pen go up and end at the top. So this entire challenge will get reduced totally. She practiced it for 1 month and now she has no problem at all right now. The incident क्यों हुआ? In one of the exams she scored less and somewhere the parents shouted at the child कि इस बार अगर तुमने कम मार्क्स लेकर आया तो देख लेना कि this is not right at all. You should always score well. कुछ parents हो जाते हैं, authoritarian parents होते हैं, तो थोड़ा सा force कर देते हैं. And that thought, that words made her to think like that. कुछ wrong नहीं होना चाहिए, कुछ wrong नहीं होना चाहिए, कुछ wrong नहीं होना चाहिए. Last time भी मैंने wrong किया, फिर से time मेरा wrong ना हो जाए. With that fear, she started developing this, and that incident changed her into this parameter. She was not signing like this earlier. So I could remove this just by changing her signature. Change भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. She continued writing VS Nayak and just putting an underline at the bottom, the pen ending up. My friends, I'm giving this example just to make you understand. Logi means study and graph is the graph of your life. So study of the graph of your life is nothing else but graphology. That is what we are going to discuss, because very few people might have heard about this science. कि ऐसा हैंडराइटिंग से, सिग्नेचर से हमारी पर्सनालिटी पता चलती है, हमारे माइंड में क्या चलता है. यस, 100%. I am working from last 10 years and I've at least analyzed 1000 plus samples in the last 10 years and I could help many people, especially the kids, because I am a teacher by profession. So when I came to know about this science in 2010, before that I was also not able to change the mindset. I was putting all the efforts, the kids were also putting all the efforts, but results were not up to the mark. वो दोनों मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उतने लेवल पे नहीं था. उसका रीजन क्या है? साइकोलॉजिकल जो अंदर एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे फॉर्म होता है, फियर का, एंजाइटी का, डर का, पास्ट फेलियर्स का,
उसके पैटर्न्स ब्रेन में फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको आते हुए आंसर्स हम लोग भूल कर आ जाते हैं। एक एक इंसिडेंट्स हमारे मन में फ्रोजन थॉट्स के जैसा पड़े रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म। एंड थ्रू हैंडराइटिंग, इफ यू कैन रिमूव दिस चैलेंजेस, mindset totally changes, the mind transforms, and we can grow in life like anything. I'll be talking about few 5 to 6 parameters, I think so. 5 major parameters which you are supposed to check into your handwriting. आप आपके handwriting में check कर लेना. If they are not there, try to practice it from today or tomorrow whenever you get time, and see within a span of 3-4 months entire handwriting will change and your mindset will change. 7 days 10 days में ही result आना start हो जाएगा. It is a guarantee. You should be very grateful to the institute, IS Institute, to keep this session for all of you. So kindly be attentive and take notes and make points, and wherever possible, other than the slides I might be showing, because live lecture लेना अलग होता है and जो online पे lecture लेना अलग होता है. So everything I cannot show here. So better take points whenever I'll be saying something extra. Let us move ahead, my friends. So what is this science? Let us understand in detail and then come to those parameters which we are going to discuss later on for all of you. Yes. So let us start. So graphology. What is graphology? That is what we are going to see. So we all of us have 3 types of personalities. हम सब के अंदर 3 types of personality है, जो ये साइंस जो है ग्राफोलॉजिस्ट को बताता है. नेक्स्ट स्लाइड नरेश. So it's a science of understanding human personality through handwriting and signature. We all of us have 3 types of personality. The first personality is the personality which we show to the outside world. पहली वो personality होती है जो हम दुनिया को दिखाते हैं. Second personality is the personality which we think we are, and the third one which we actually are. तीसरी personality जो होती है जो हम actually होते हैं. तो first one which we show to the outside world, the first personality is the personality which we show to the outside world. The second one which we think we are, and the third one which we actually are. Means what? ये तीनों के पीछे का साइंस क्या है? The one which we show, for example, आज मेरा introduction हुआ, मैडम ने मेरे बारे में बताया, and I am also talking something and about the science and everything. So we dress up well and we present ourselves as a personality. So people might see, oh, sir is a great personality. सर के बारे में मैं बहुत सारी बातें सुनी, अच्छा लग रहा है सर के बारे में सुन के. So that is one personality which we show. अभी second एक ऐसी personality होती है जो हम सोचते हैं कि हम सही है. My mentor always says, मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, whatever is happening in your life, your parents are not responding to you properly, you're not able to communicate with the parent properly, that means it's your responsibility. कहीं ना कहीं आपकी communication में problem था. So my mentor always says, the meaning of your communication is the response what you get. I repeat, the meaning of your communication is the response what you get. यानी कि there is something wrong in my communication because of which I am getting a wrong response. If your communication is perfect, the response also will be perfect. कहने का मतलब क्या है? जो कुछ भी हो रहा है, it's I am responsible for whatever is happening. So that is the second personality, the one which we think we are. मैक्सिमम टाइम हम सबको एक ही चीज लगता है कि आई एम ओनली परफेक्ट, मैं ही परफेक्ट हूँ, सामने वाला गलत है. नाउ दिस बिकम्स अ वेरी रॉन्ग नोशन. ये सबसे गलत बात होती है. हम परफेक्ट नहीं, सामने वाले भी परफेक्ट नहीं. बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिसको अपना ये प्रॉब्लम मालूम पड़ता है. यस सर, आई मेड अ मिस्टेक. मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है वो हमेशा सामने वाले को ही ब्लेम करते हैं. एंड मेरे मेंटर क्या कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ. The one personality which we think we are is the most dangerous one. Which we think we are is the most dangerous one. So we have to come out of the second personality and go to the third one, the one which we actually are. मेरे अंदर भी 4-5 नेगेटिव ट्रेट्स थे, मुझे नहीं मालूम था. मैं हमेशा समझता था कि मैं ही सही हूँ. I am only right. In 2010 when I learned this science, I came to know कि I have lot of negative personalities because of which people were leaving me and going into partnership. मैंने एक पार्टनरशिप किया था जिसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ और जिसकी वजह से मेरे पार्टनर छोड़ के गए. उस वक्त में मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सही, वो गलत है. बाद में मुझे पता चला थ्रू माय हैंडराइटिंग कि there is something wrong in my leadership. The way I was leading was not perfect to take care of people around me and to manage them. So I rectified that handwriting and I changed my mindset, and I could see now
I'm leading organizations. I'm leading various organizations. I'm into Maharashtra Class Owners Association. I'm into University of Mumbai Alumni Association and lot more. Like I'm training, coaching classes. I'm into B.Ed teachers training into graphology and many such things. And most of the years, like in the last 10 years, I can say key, I'm able to handle people and take to the next level. It's only because I changed my leadership. I used to always feel I am right, but I rectified that thing, my friends. ये सेकंड पर्सनालिटी हमेशा हमको धोखा देगी और हमको हमेशा पर्दे में रखेगी और आपको हमेशा क्या लगेगा कि तुम ही सही हो और सामने वाला गलत है। तो कहते हैं ना कि उम्र भर गालिब ये गुस्ताखी करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा और चेहरे पे धूल थी। ये पूरा जो सेशन है 1 सवा घंटा जो भी हम बात करेंगे, whatever parameters I am going to discuss, you're supposed to check in your handwriting and check, rectify those things in your handwriting. The moment you start rectifying yourself in your handwriting, your life will start changing. The moment your life will change, the people's response towards you will change. The people's response towards you will change. And see, you will say, दुनिया बदलने लग गई सर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि तुम बदलने लग गए। क्योंकि हम सबसे पहले सेकंड वाली पर्सनालिटी भी अटके हुए थे, हमेशा हमको सामने वाला गलत लगता था। और एक्चुअली जो है वो थर्ड वाली पर्सनालिटी होती है, द वन विच वी एक्चुअली आर। इसको समझना बहुत जरूरी है। आप आज की तारीख में बहुत सारे एनजीओ जो है फील्ड में काम कर रहे, कोविड-19 में लोगों को हेल्प करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ फोटो निकालने के लिए जो है वहां पर फील्ड में जाकर लोगों को जो है खाना बांटते हैं और फोटो भी निकालते हैं। तो कुछ लोग फोटो के लिए करते हैं और कुछ लोग ट्रू में सोशल वर्क करते हैं। समझ में आ रहा है? दो पर्सनालिटी, एक है जो फोटो निकालने के लिए करता है और दूसरा जो है रियल रियल में सोशल वर्क करता है। Yes, NGOs have to take photographs to submit the report. I'm not talking about NGOs. I'm talking about those people, those are putting photographs for showing that मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो दुनिया को क्या दिखा रहा है? पर्सनालिटी क्या है? आई एम डूइंग अ सोशल वर्क। और एक्चुअल क्या है? मैं अपने बारे में दुनिया को बता रहा हूँ कि मेरे जैसा कोई है नहीं, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं अगर आपको सोशल वर्क करना है, ट्रू सोशल वर्क करना है, आपका कैमरा और मोबाइल फोन घर पे छोड़कर आइए। दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सोशल वर्क। So try to understand there is always a hidden personality behind every single personality. So we can understand this personality through handwriting, and we will also understand what is wrong in us, what is the incompleteness in us through your handwriting, and we'll rectify that thing in the next 1.5 or whatever maybe the time is. Let us see the one which we actually are. जब हम लोग understand करते हैं कि actual personality क्या है। Next, Naresh. So we will try to identify this third one. There are various methodologies to find out the real personality, my friends. आप सब लोगों ने साइकोमेट्रिक एनालिसिस सुना रहेगा, नहीं भी सुना रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। साइकोमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें 1 क्वेश्चन 4 आंसर होता है, 1 क्वेश्चन एंड 4 आंसर्स। एंड कौन बनेगा करोड़पति में 1 क्वेश्चन 4 आंसर होता है और उसमें 1 करेक्ट आंसर होता है, 3 गलत होते हैं। यहाँ पे देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग आंसर। उस क्वेश्चन के हिसाब से आप कोई भी एक आंसर टिक कर सकते हैं। तो वो टिक करते टाइम आप जो भी सोचेंगे उस हिसाब से वो आंसर को टिक करेंगे। और कुछ 100-150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से यू टिक यू टिक यू टिक। एंड आपके अंदर के थिंकिंग पैटर्न्स को उस क्वेश्चन के जरिए, उस आंसर्स के जरिए आपकी पर्सनालिटी को बताया जाता है। Many big companies, corporates use this psychometric test to appoint people at various positions. You come to know अगर मैनेजर वाला पोस्ट है तो कौन सी इसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर प्रोक्योरमेंट मैनेजर है तो कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, एचआर हेड होना चाहिए तो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस के जरिए भी जो है आपका जो पर्सनालिटी पता लगा जा सकता है। एक डीएमआईटी करके हैं जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से लोग अपनी पर्सनालिटी पता लगाते हैं। जब भी फिंगरप्रिंट फॉर्म होता है उंगलियों पे, उसी टाइम पे ब्रेन फॉर्म होता है। तो ब्रेन का फॉर्मेशन और उंगलियों पे फिंगरप्रिंट का फॉर्मेशन दोनों साथ में होता है। तो उस हिसाब से एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं डीएमआईटी, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तीसरा एक और मैंने देखा है कि एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस भी किया जाता है। बहुत सारे एक्टिविटीज देते हैं और उस एक्टिविटीज के जरिए लोगों की पर्सनालिटी पता चलती है कि अगर एक एक्टिविटी दिया उसने उस एक्टिविटी को कैसा अंजाम दिया, व्हाट वाज हिज मेथोडोलॉजी फॉलोड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। उससे पता चलता है लीडर है, फॉलोवर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है या बिजनेस माइंडसेट है। दैट इज आल्सो अवेलेबल। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ग्राफोलॉजी। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफोलॉजी, व्हाट हैपेंड वन डे, एक डीएमआईटी टेस्ट में एक बच्चे का रिपोर्ट आया जिसमें लिखा था मैथमेटिक्स इज
वेरी हाई, मतलब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बच्चे का बहुत हाई है. सो आई वाज जस्ट रीडिंग दैट, उसमें लिखा है कि मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस इज वेरी हाई. तो इमीडिएटली पेरेंट ने बोला कि सर एक्चुअली तो मैथ्स में, एक्चुअली जो मैथ्स में जो है स्क्रीन इज नॉट क्लियर. नरिश, एनी चैलेंज दैट? No, sir, it's clear. It's clear, na? Yes. Clear, sir. Okay, someone had written screen is not clear. Fine, no issues. Because since it is online, there might be few disturbance here and there. Stay tuned and be there, and we'll try our level best to give whatever we can. So I was talking about this child who got this report. ठीक है, एक रिपोर्ट जो है आया था जिसमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हाई लिखा था, और इमीडिएटली पेरेंट ने बोला कि सर तो मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं करता, इज वेरी वीक इन मैथ्स. सो व्हाट्स द रिपोर्ट रॉन्ग? नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसका ब्रेन के पैटर्न्स में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाज वेरी हाई, बट ही दिस चाइल्ड हैज फियर फॉर मैथ्स. मैंने उसको पूछा कि बचपन में ऐसा कोई भी इंसिडेंट था जिसमें तुमको मैथ्स नहीं आता है करके ऐसा पता चला? बोले सर, आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, जब मेरे से कुछ 3-4 सम रॉन्ग हो गया और मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे जोर से लाफा मारा और बोला तुझे मैथ्स नहीं आता. तो मोमेंट यू से तुझे मैथ्स नहीं आता है, एज अ टीचर, एज अ सीनियर पर्सन, समवन सेज दैट थिंग और उसको हिट करते हैं या मारते, पुराने जमाने में मारा बुत करते थे, तो मारने के साथ साथ उसके दिमाग में एंकरिंग हो जाती है और स्टेटमेंट क्या दिया जाता है कि तुझे मैथ्स नहीं आता. एंड द चाइल्ड लिसन्स टू दिस स्टेटमेंट, एंड a person, elderly person is giving this statement, and even though he has intelligence for maths, वो स्टेटमेंट को अपने अंदर ले लेता है और मैथ्स के तरफ उसको देखने का नजरिया बदल जाता है. वो जिंदगी भर बोलता है मैथ्स मुझे नहीं आता, मैथ्स मुझे नहीं आता. और कितना भी अच्छा टीचर सामने रहे, साक्षात ब्रह्मा को लाके खड़ा कर दे, तो वो तो बोलता रहेगा कि मुझे मैथ्स नहीं आता, बिकॉज उसके चश्मे में क्रैक है और वो बोलता है दुनिया क्रैक है. उसके चश्मे में क्रैक है और वो बोलता है दुनिया क्रैक है, बिकॉज the thought process which he has for the maths is of fear. He doesn't know maths and he's trying to learn maths. तो कैसा हो पाएगा? Handwriting से उसका ये fear मालूम पड़ता है. We can identify this fear through the handwriting, and then if we change these fears, all such parameters can be identified and we can remove everything, and the life will go to the next level. So that is what we are going to discuss here. That is graphology, my friends. So graphology थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं. सो व्हाई ग्राफोलॉजी? सो आप सब लोग जानते रहेंगे कि एवरी सिंगल पर्सन हैज अ यूनिक फिंगरप्रिंट. हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है. अगर 700 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, इस धरती पे है, तो उसमें से हर एक जन का फिंगरप्रिंट अलग है. सिर्फ फिंगरप्रिंट इज यूनिक, सेम वे हैंडराइटिंग इज यूनिक. एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे लोग ध्यान से सुनना, कभी कभी हम नोटबुक में अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, कवर में नाम लिखते हैं, लेकिन कवर फट गया है, नोटबुक सबमिट किया टीचर के पास, टीचर करेक्शन करने के बाद व्हेन शी रिटर्न्स, ट्राई टू रिटर्न्स इट बैक टू यू, आपका नाम लिखा नहीं है, एंड टीचर विल रिमूव द बुक एंड शो इट टू द स्टूडेंट्स, हु इज दिस चाइल्ड हु हैज नॉट रिटर्न द नेम. हमारे टाइम पे तो ऐसा बोलते हैं, हु इज दिस शेमलेस बोन हु हैज नॉट रिटर्न द नेम, शेमलेस बोन हु हैज नॉट रिटर्न द नेम. तुम लोग ऐसा देखते थे, अरे इट इज माय हैंडराइटिंग, इट इज माय, सर सर, मैडम मैडम, इट इज मी, it is me. Even though there is no name written, even though there is no name written, you can identify your book is only because you can identify your handwriting. You can identify your handwriting. It is your book. Why? Because it is your handwriting. So your handwriting is unique. If I'll make you to write in a piece of paper and take that handwriting and mix it with 1000 samples of handwriting, 1000 samples में भी अगर मैं mix कर दूंगा, it is guaranteed that you will be able to identify your handwriting is because your handwriting is unique. Your handwriting is unique. So what it is? So handwriting will speak about everything what is inside your brain which you others cannot speak. Handwriting is the faithful echo of your real personality. आपके personality का faithful echo है. ये आपके अंदर का how you think, feel and behave, ये सब चीज आपको, और ब्रेन प्रिंट रिवील्स हु वी आर एंड हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव. ये तीनों चीज जो है आपका हैंडराइटिंग सब चीज बता सकता है. सो फाइनली हैंडराइटिंग इज द एक्सरे ऑफ योर माइंड. हैंडराइटिंग इज द एक्सरे ऑफ योर माइंड. नाउ व्हाट इज दिस माइंड? इसको समझना बहुत जरूरी है. इफ आई टॉक अबाउट ब्रेन, यू कैन शो यस सर ब्रेन इज हियर. इफ आई टॉक अबाउट हार्ट, यू विल से हार्ट इज हियर. किडनी बताएंगे तो सर थोड़ा नीचे है, स्टमक है, लंग्स यू कैन शो. But when I tell you to locate mind,
locate mind. You'll not be able to locate it because mind is not an anatomical organ. It's not an organ. एक organ नहीं है. Mind एक विचारों की पूंजी है. It's a conceptual bag of thoughts. बहुत सारे thoughts. Which thoughts we don't know. Good, bad. Which thoughts we don't know. But it's a conceptual bag of thoughts which has been given to us during our upbringing. -9 months to 14 years. माँ के कोख से लेके 7 साल, 7 साल से 14 साल. These are the most crucial years जिसमें ऐसे कई सारे थॉट्स जो है हमारे ब्रेन में आ जाते हैं, माइंड में आ जाते हैं. उसी थॉट से हम ऑपरेट करते हैं. और माइंड का कोई ऑर्गन है नहीं तो उसका एक्सरे नहीं निकाल सकते. ब्रेन में सर दर्द या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो चलो सीटी स्कैन किए, ब्लड में चैलेंज है तो ब्लड टेस्ट कर दिए. बाकी कोई जगह में हिस्से में कोई हार्ट में या कहीं पे प्रॉब्लम है एक्सरे निकाल लिए. मन में प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा? मन में प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा? सो हैंड राइटिंग क्या करता है? वो माइंड का एक्सरे निकालता है. व्हाट आवर योर राइटिंग, whatever flow of the writing, the way it is been written, जो भी आप लूप कर्व्स वगैरह सब बनाते हैं इसके अंदर, so this shows the X-ray of your mind. आपका कितना फोकस है, कितना फोकस नहीं है, आप सेंसिटिव हो कि नहीं हो, आपके अंदर हाई गोल्स की तरफ काम करने की ताकत है कि नहीं, या अपने आप को बहुत ही सीमित समझते हो, कमजोर समझते हो, ये भी पता चलेगा. आप प्लानिंग करते हो कि नहीं वो भी पता चलेगा. सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हो वो भी पता चल जाएगा. कितना दिमाग को यूज करते हो, कितना दिल से सोचते हो, ये सब चीज पता चला. एनर्जेटिक है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा. अगर नहीं है तो क्या मैं हैंडराइटिंग बदलूंगा तो ये सब आदतें मेरे अंदर आ जाएगी, 100% आ जाएगी. So I'll be speaking which are the parameters which you can change in your handwriting, which needs to be observed in your handwriting, and how we can take it ahead. So let us do a small activity, my friends. एक एक्टिविटी करते हैं. सब लोग के पास मैडम has already instructed you to have some book to write something. Blank page रहा तो बहुत अच्छा, नहीं रहा तो book और पेन होना चाहिए लिखने के लिए. So what is that activity? Each one of you is going to write about yourself. हर एक जन अपने बारे में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 8 to 10 लाइन्स सबको लिखना है. Everyone is going to write 8 to 10 lines about themselves. अभी क्या लिखना है ध्यान से सुनो. What you are going to write? You are going to write starting every line with capital letter I. यानी कि आप I से शुरू करोगे. I. Every line should start with I. तो क्या लिखना है? I am giving an example. जैसे कि I like to play cricket, or I don't like to watch TV, or I don't like to play cricket. तो like and dislike. जैसे कि like भी लिख सकते हैं, dislike भी लिख सकते हैं. अब मैंने ये लिखा है, ये मेरा लिखा है. I like to play cricket, I don't like to read books. ये मैंने अगर लिखा है तो ये आपने लिखे. It should be your thoughts. It should be your thoughts and not my thoughts. So I'm giving all of you 3 to 4, 5 minutes. Write 10 sentences about yourself, 8 to 10 sentences. Every sentence will start with I. I like, I dislike, I like, I don't like. ऐसे 8 to 10 sentences अपने बारे में लिखेंगे. And once you have written, if the chat box is available to you, type ready, done. Done करके आप लिख देना. अगर आपका लिख कर हो गया है तो you can chat, write done into that thing. So 3 to 4 minutes given to each one of you. और जिसका लिख के हो जाएगा वो डन लिख देना चैट बॉक्स में. अगर चैट बॉक्स में अगर आप टाइप कर सकते हैं तो अच्छी बात है. सो आई विल कम टू नो कि आपका हो गया है. So while the children are writing, may I ask a question? Yeah. Why did you tell them to write every sentence starting with I? There's a reason behind, because a very important parameter is I. I is me. है ना? So we can identify certain parameters through that capital I. So they need to change it if there is something wrong in that. Got it? Sir, are you telling us? Hello.
Yeah. Okay. Yes. Done. Okay. First person is Bopre. Kitna fast. They're all writing very diligently. Done. Very good. Come on, students. Teachers are already done. You just have to write a few sentences on yourself. Huh. Manisha ma'am, while the children are writing, can I say something? Yes. Why not? Good evening, sir. This is Rinki Soni. I'm the Vice Principal at IS Public School, Ratibad. And Okay. today it is really, I should say, I'm very fortunate to attend your session today. Today I came to know why Manisha ma'am, our very own Manisha ma'am, keeps on talking about Prajesh Trotsky so much. Really, just within 15 minutes of your session, I could make out why ma'am is such a big fan of yours. And Okay. really, since I'm a very, I should say, handwriting conscious person, so this is really, really very interesting, sir. Thank you so much Yes. for Yes. coming and joining. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. There's something to learn from sir every single time. Yes. Yes, I've already started realizing it. Yeah. Now, if we all are teachers, so very important for all of us to make a note of whatever it is I'll be discussing, and you can start implementing. Like I'll give you the tips and everything. कि कैसा बदलना है. So it will be great, helpful to all the teachers also. Exactly, sir. Yes. अच्छा, whatever is true for the children, it is true for all of you. कि जो भी पैरामीटर जो बच्चे में है वही चैलेंज हमारे हैंडराइटिंग में इट इज ट्रू इवन दो इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स टुडे it is true for every single person who's are watching me in the YouTube if it is live. It's true for everyone. So you're just supposed to observe in your handwriting. So almost everyone has finished. I hope so. Chalo, let us take one by one the parameters. एक एक करके हम लोग parameters को देखते हैं. Let us see the first one. Now, first parameter to be discussed is slant. What the meaning of slant means? In which direction your handwriting flows. या left की तरफ जाता है, straight खड़ा रहता है, and all those things. These are called as slants. So आपका handwriting ये तीन में से एक style में रहेगा. Cross check your handwriting one by one. So the first one, if you'll see, it is going. See the second one, where it is going, where it is standing, and see the third one. तो फर्स्ट वाले को ध्यान से देखेंगे it is leaning towards the left. Second one, if you'll see, it is standing straight. Third one, if you'll see, it is leaning towards the right. The left, straight, and right. Now if you'll see the entire handwriting, यानी कि ये तो one word if I have shown you. Let us see how it look in the entire handwriting. One single line जो है वो कैसा दिखता है. Complete line जब लिखेंगे, how we will be able to see it. So this is the first one, leaning towards the left. Second one is standing straight. Third one is leaning towards the right. So third one right के तरफ, second one straight, and first one left के तरफ. So here there is
No teacher taught you to write like this way. You picked your own way. आपने आपके हिसाब से जो है हैंडराइटिंग को पिक किया. वो लेफ्ट की तरफ गया, कुछ लोगों का स्ट्रेट है, कुछ लोग का राइट की तरफ गया. टाइप इन योर चैट बॉक्स. आपका कौन सी है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला या थर्ड वाला? विच वन इज योर्स, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन? यू कैन टाइप इन योर चैट बॉक्स. लेट अस बी लिटिल इंटरैक्टिव. सो मुझे भी पता चल रहा है कि सामने लोग सुन रहे. स्ट्रेट, यस. सेकंड वन, स्ट्रेट. लेफ्ट, एक लेफ्ट आया. स्ट्रेट, सेकंड इज स्ट्रेट, राइट की तरफ, लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट. फाइन. Naresh, there is some disturbance. Fine. Second and third भी है. Okay. Certain people are having second and third. Mixture है. Okay. Anyone who is having all the three? Left B, straight B, right B. It's never the same. Combination. Achha. So there is a combination, first, second, third. Okay. Straight, sometimes right. Chalo, ठीक. Let us understand this personality properly. Okay. किसी का तो second and third है, ठीक है. तीनों है किसी का. Anyone is having all the three? नहीं है, वो rare है. और rare species होते हैं which has all the three. So let us one by one understand. Sometimes left. 1 2 3 राजकुमार. 1 2 3 मतलब सब है. Very good. चलो देखते हैं, understand करते हैं कि what is the trait along with this three style of writing. Try to understand. No teacher taught you, just took your own trait. ठीक है. So first one is going towards the left. Second one is standing straight, and third one is leaning towards the right. Now I'll ask you a question here. Everyone can type in your chat box. Fine. Now think and write the answer. सब लोग सोच समझ के इसका आंसर देंगे. Which person or which child will be thinking from the past? Which child will be thinking in present, always remaining in present, and which child will be future oriented? इसमें से फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाले में से कौन पास्ट के बारे में ज्यादा सोचता है, कौन प्रेजेंट में रहता है और कौन फ्यूचरिस्टिक रहेगा? If I ask this question to you, what would be the answer? Type in your chat box. First one, past. Okay. First, second, third. तीनों के बारे में लिखिए. First, second, and third. First, second, and third. First one is past. Second one is present, and third one is future. First one is past, second one is present, third one is future. कौन सी बड़ी बात है सर? पर आज तक कभी आपने सोचा था कि ऐसा होता है करके? Yes, very common sense, logical है यहाँ पे पूरा का पूरा. Anything towards the left is connected to your past. Anything standing straight is connected to your present, and anything leaning towards the right is a person who is always future oriented. सब लोग ध्यान से देखेंगे. यस, आपका चेक कर लेना आपका कौन सी मिक्सचर है. जो सेकंड एंड थर्ड है तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, फर्स्ट एंड सेकंड है तो पास्ट एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड. अगर एक ही है तो आप इसमें मैक्सिमम जितने भी टीचर्स है, इफ देयर आर मोर देन, इफ हुअर टीचर्स आर देयर, या हुअर टीचर्स आर देयर, 98% टीचर्स, 99% टीचर्स विल बी राइटिंग स्ट्रेट. जितने भी टीचर्स सामने हैं मेरे, सबका हैंडराइटिंग स्ट्रेट ही रहेगा. Most of the teachers will always have a straight handwriting. उसका रीजन कोर्स में सिखाता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा. So second one is the straight one who always lives in present. Example के तौर पे when I meet the first type of person, जो first type है वो past oriented रहेगा. For example, I am meeting a principal of a school and he is a person who writes towards the left. So when I'm talking about things, I am Prajesh Trotsky, I'm into training and analysis counseling. I do a lot of graphology trainings for the teachers, and from teachers we can take it to the students and we can tell the parents how we can identify the handwriting and signatures, personality through handwriting and signature. So let us do something which is great for the society and all. So he will say कि
पहले भी बहुत सारे लोग आपके जैसे आकर गए थे मेरे पास, अब आपका कार्ड छोड़कर जाइए, बाद में हम आपसे बात करेंगे। सो ही ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम द पास्ट। वो पास्ट के थॉट्स को लेकर हमेशा ऑपरेट करेगा, और वो जैसा लिखता है वैसा बैठता भी है, वो जैसा लिखता है वो वैसा बैठता भी है। द पर्सन, द वे यू राइट is the way you sit. The first person, those who lie towards the left, will always sit, lean towards the chair, बैक साइड की तरफ वो लीन करेगा, अपने बॉडी को ऐसा बैक की तरफ लेके जाएगा, एकदम लेफ्ट की तरफ, और वो लीन करके सामने वाले से बात करेगा। Now, second one is present oriented. So I'll be talking to a person who is present oriented, and I'm telling sir, I'm a coach who takes into handwriting and signature analysis. हम आपके टीचर्स लोग के लिए सेशन ले सकते हैं, उसके बाद बच्चों के लिए ले सकते हैं, पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, ये बहुत सारा काम हो सकता है सर, बच्चों का लाइफ सुधरेगा। सो सिंस ही इज अ प्रेजेंट ओरिएंटेड पर्सन, ही विल ऑलवेज से कि अभी किस चीज के लिए आए हो आप सर, हम क्या एक फ्री सेशन टीचर्स के लिए रख सकते हैं? यस, तो पहला तुम फ्री सेशन रखो, बाद में देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। सो ही विल टॉक कि अभी का बात करो, मुझे आगे का पीछे का मत बात करना। राइट नाउ फॉर व्हाट यू हैव कम सर, आई वांट अ परमिशन टू टेक अ सेशन। यस, which day, what time, एकदम प्रेजेंट ओरिएंटेड, दे बिकम द बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूट। एंड थर्ड पर्सन हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहेगा, जब तक मुझे इसको फ्यूचर नहीं दिखाऊंगा ये मेरी बात नहीं सुनेगा। सर, आई एम अ काउंसलर, आई डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम इनटू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस के जरिए सर बच्चों की पर्सनालिटी पता चलती है। टीचर्स को हम बता सकते हैं कि बच्चों के अंदर क्या चैलेंजेस है, और उनके हैंडराइटिंग अगर बदल देंगे तो बच्चों का लाइफ बदलेगा, और एक बार बच्चों का लाइफ बदलेगा, माइंडसेट बदलेगा, उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उनके रिजल्ट्स आने के बाद स्कूल के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो स्कूल का नाम होगा, और एडमिशन स्कूल्स में आएंगे सर, और देखना फिर बाद में भोपाल में इससे बेहतर स्कूल और कोई नहीं रहेगा। मुझे उनको फ्यूचर तक लेके जाना पड़ेगा, फ्यूचर तक। जब तक मैं उसको फ्यूचर ना दिखाऊं ये बंदा मेरे से कनेक्ट नहीं होगा। Every person has the personality. The first one will operate from the past, second one will be in the present, and the third one will be futuristic. And all three are correct at their own places. There is no problem at all यहाँ पर। Now, in terms of emotions, बच्चों के टाइप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, in terms of emotions क्या होगा, ध्यान से सुनना है एग्जाम्पल। Now, a child is writing the first way, first तरीके से लिख रहा है, लेफ्ट की तरफ उसका हैंडराइटिंग जा रहा है। Now this child got some punishment in the school. कुछ तो आज डांट मिला है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था स्कूल में, and mother came to know through the teacher. Teacher called the mother and told कि आपके बच्चे ने घर क्लास में थोड़ा सा मस्ती किया, सो थोड़ा सा पनिशमेंट मिला है। So the child returns back home, तो mother will ask what happened, स्कूल में क्या हुआ? तो the child will say nothing happened. Now see how he is writing. He is taking the writing back, यानी कि he represses the emotion. He represses the emotion. He will never express. He will repress the emotion. Repress करेगा, बताएगा नहीं। मम्मी बोलेगी मुझे मालूम है कि कुछ तो हुआ है स्कूल में, he will say कुछ नहीं हुआ। एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, बैंड तक पूछते ना, नहीं बताएगा। कितने सारे बच्चे होते हैं नहीं बता, ऐसे क्यों होते हैं? कभी तो बचपन में उसने एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी, देयर वाज नो वन टू लिसन, देन ही स्टार्ट्स रीप्रेसिंग। क्या फायदा, बता कर भी मतलब नहीं है, तो वो रीप्रेस करना स्टार्ट होता है, वो लेफ्ट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, तो ही स्टार्ट्स रीप्रेसिंग। तो इमोशंस को कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, बहुत ही सीरियस रहेगा। लोग हंसाएंगे तो भी हंसता नहीं है, बस हंसता है, बट कैसा है कि कभी भी अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा, कितना भी पूछ लो। वेरी रेयर पीपल कैन ओपन अप देयर माइंड। पीपल लाइक मी, दोज हु हैव द पोटेंशियल टू टॉक टू पीपल एंड मेक देम टू स्पीक। अपने एक स्टाइल होता है, बॉडी का रैपो हम लोग बिल्डअप करते हैं और बाद में उनसे पूछ के लेते हैं, वरना दे विल नॉट ओपन अप, दे विल रिप्रेस। तो इनका फायदा क्या रहता है, इमोशंस को लेकर नहीं आते, तो काम इतना अच्छी तरह से करते कि ग्रो करके एकदम बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। यू विल सी बिग बिग पीपल, दोज आर इनटू बिग बिग पोजीशंस, उनका पूरा एक्सलेंट ही रहेगा। वैसा चेयर में बड़ा सा चेयर रहेगा, उस चेयर पे से लीन करके बैक साइड की तरफ बैठेंगे। यस, व्हाट हैपेंड, ये उनका स्टाइल रहेगा, बिकॉज इमोशंस को यहाँ पर वो लाते नहीं है, काम पे फोकस रखते हैं। सो दे ग्रो वेरी फास्ट इन लाइफ, वेरी फास्ट इन लाइफ। लेकिन लोग उनको हमेशा खड़ूस समझेंगे, खड़ूस समझेंगे, बोलेंगे क्या यार इसका थोबड़ा देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ यार, जर्रा भी इसके अंदर मूड नहीं है, हिटलर जैसा आदमी ये लगता है, क्या मालूम है कैसा इंसान रहेगा। अंदर बहुत इमोशंस रहेंगे, अंदर आपसे प्यार भी करता रहेगा, सब चीज करता रहेगा, बट वो कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा। थोड़ा सा लेफ्ट मेरे दोस्तों चल जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट इज नॉट अलाउड, एक्सेसिव लेफ्ट ठीक नहीं है, उसकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर है so you can consult a counselor, you can consult me later on how we can
do the analysis and change this challenge into. मेरे पास एक केस आया था जो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ था, मैंने बातचीत करके बहुत सारा चीज़ें मैंने उनसे बात करके सब वो चैलेंजेस को मैंने निकाल दिया, एंड नाउ द पर्सन इज टोटली राइटिंग स्ट्रेट और इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट स्लांट ऑटोमेटिक उनके अंदर से निकल गया. एक्सट्रीम लेफ्ट इज नॉट गुड, लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट इज ओके. अगर सामने किसी का हैंड राइटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट है, नीड्स टू बी अप्रोच्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द पर्सन इज राइटिंग स्ट्रेट. अभी ये बच्चे ने मार खाया, अभी स्ट्रेट लिखने वाले बच्चे की कहानी सुनो. इसने मार खाया, पनिशमेंट मिला है, टीचर ने पेरेंट को फोन करके बोल दिया है, बच्चा भागकर घर पे पहुंचता है तो मम्मी पूछती है क्या हुआ स्कूल में, तो बच्चा बोलता है अच्छा आपको मालूम पड़ा, पूछेंगे तो बताएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले वाला पूछने के बाद भी नहीं बताएगा, सेकंड वाला पूछेंगे तो बताएगा. क्यों? वो प्रेजेंट में जीने वाला है. वो बोलता है यार पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं, बिकॉज उसको उस पल में लफड़ा नहीं चाहिए. He doesn't want to speak about that thing, so he express emotions when required. Mother will ask, अच्छा मम्मी you came to know, ऐसे एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा पनिशमेंट मिल गया. मम्मी पूछेंगी नहीं बताएगा, मैं जबरदस्ती जाके क्यों बोलूं, जबरदस्ती क्यों पास्ट की बातें निकालूं, मैं तो प्रेजेंट में जीने वाला हूँ. अभी खाना खाऊं कि उसके बारे में बात करूं, जो स्कूल में हुआ, जो हो गया. तो प्रेजेंट में जीने वाले लोग पास्ट को नहीं लेकर आते, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, प्रेजेंट में रहते हैं. दे वांट टू लव व्हाट इज प्रेजेंट. अभी इस वक्त में इस पल में क्या इंपॉर्टेंट है वो करेंगे. वेरी क्लासिक पीपल. एंड थर्ड वन, ये बच्चे ने मार खाया है, घर पे आते साथ ही मम्मी ने पूछा नहीं पूछा ये चालू हो जाता है. फट मम्मी ऐसा हो गया था, मैंने नहीं मारा तो उसने चालू किया था, फिर उसने मेरे को बोला तो मैंने भी उसको छोड़ा नहीं, तो मम्मी को बोलना पड़ता है चुप भेट, मैंने तो पूछा तक नहीं, मम्मी को मालूम भी नहीं है, मम्मी हैज नो आइडिया इस केस में, ये आके चालू कर देता. ही इज सो टॉकेटिव, he wants to always express, he would always like people around him. उसको हमेशा लोग चाहिए. तीसरे वाले लोग को हमेशा लोग चाहिए, हमेशा बाजू में लोग चाहिए. सेकंड वाले को बैलेंस्ड में चाहिए, कभी चाहिए नहीं चाहिए तो भी चाहिए. फर्स्ट वाले के लाइफ में कोई नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा. सो द थर्ड पीपल वुड ऑलवेज लाइक टू एक्सप्रेस, दे वुड ऑलवेज लाइक टू बिल्ड पार्टी ग्रुप्स. एंड अब सोचो करियर के हिसाब से थर्ड वाले किधर जाएंगे, सेकंड वाले किधर जाएंगे और फर्स्ट वाले किधर जाएंगे. फर्स्ट वाले तो आपको बताया मैंने, दे विल लीड ऑर्गेनाइजेशंस, इमोशंस को नहीं लेकर आएंगे, दे विल टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल. Second people will be the backbone. They will become the backbone is only because they live in present. Present में जीने वाले लोग क्या करते हैं, आज का काम आज कंप्लीट करते हैं, so they can complete. अभी present में जो straight लिखते बच्चे, maximum students will be able to do the homeworks on time because they teacher ने सुबह homework दिया तो उसको कंप्लीट करना है, तो ये बच्चे बहुत कर पाएंगे आराम से. थर्ड वाले को थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट सेकंड वाले के लिए तो नेचुरल है, थर्ड वाले को क्यों एफर्ट डालना पड़ेगा, होमवर्क कर रहा है और कल के बारे में सोच रहा है, बिकॉज ऑफ फ्यूचरिस्टिक. होमवर्क कर रहा है, कल के बारे में सपना सोच रहा है, परसों के बारे में, अरे वो संडे को जो पिकनिक है ये भाई साहब अभी होमवर्क करना है. तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं है थर्ड वाला, उसकी अपनी क्वालिटी है, बिकॉज इज मोर फ्यूचरिस्टिक. तो सेकंड वाला बैकबोन बनेगा, वो इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. एंड थर्ड पीपल इसमें डाल देना सेल्स, मार्केटिंग, टॉकिंग टू पीपल, एचआर, जहाँ पे लोगों के साथ उसको कम्युनिकेट करके उनको इन्फ्लुएंस करना उनको आता है. दे आर पीपल्स पीपल, लोगों के लोग हैं लोग, उनको लोगों के बीच में रखना चाहिए. और पेरेंट्स लोग मैक्सिमम चुप बैठ, कितना बात करता है तो शट योर माउथ. तो जिंदगी का फिंगर ऑन योर लिप्स. अब बंदे के अंदर वो बात करने की पोटेंशियल है, वो जबरदस्त बंदा है जो बात करता है और फिंगर ऑन योर लिप्स बोल देते हैं, और उसका उस दिन से ये जो पोटेंशियल है, वो बात करने की शैली, लोगों तक पहुंचने की शैली, वो जो स्किल है उसका खत्म हो जाता है. लेट देम टॉक. मेरा तो सबसे बेस्ट तरीका है, इतने लोग बड़बड़ करते मैं सुनता रहता हूँ, बोलते रहो. आई लाइक पीपल टू स्पीक because they are the people, those who like to get connected to the people. सेल्समैन को लेके जाना, बेच के आएंगे लोग, बेच के सामने वाले को बेच के आ जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट भी बेचेंगे, सामने वाले को भी बेच देंगे. ऐसे बच्चे लोग मम्मी से सब चीज करवा के लेते. कितने बार बोला मम्मी ऐसा है वैसा, ये कर ले सकते, वो कर सकते हो, आपको मालूम नहीं, ये कर सकते है. मम्मी बोलती काम कर, तो जा लेकर आ जा, जो तो करना है तू कर ले. Because they know to talk to people and convert whatever possible into that. Every single person has their own personality. Nothing is right or wrong. And एक ही चीज बोला, फर्स्ट वाला एक्सट्रीम लेफ्ट ठीक नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट
ठीक है, स्ट्रेट इज ऑल्सो गुड एंड राइट इज ऑल्सो गुड। अभी सब लोग सोचते रहेंगे जब तीनों स्लांट रहेगा, लेफ्ट स्ट्रेट एंड राइट, ये तीनों मिक्सचर रहेगा तो ये क्या रहेगा? तो जिसका तीनों मिक्सचर है, सिंपल है, तीनों पर्सनालिटी रहेगी, पास्ट ओरिएंटेड, प्रेजेंट ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, इसको बोलते हैं मल्टी स्लांट। सब दिशा में हैंडराइटिंग जाता है। तो ये जो सब दिशा में जिसका हैंडराइटिंग जाता है, इन बच्चों को सब दिशा से थॉट्स आते हैं, सब दिशा से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, एकदम खतरनाक माइंड जो है उनका चलता रहता है। इतने सारे थॉट्स आते हैं, इसके बेचारे को लेफ्ट से जाता है, राइट से जाता है, तो क्रिएटिव माइंड हो सकते हैं, कुछ तो नया इनोवेट कर सकते हैं, कुछ तो नया सोच सकते हैं, सडनली उनको कुछ तो याद आएगा और कुछ तो नया। ऐसे ही माइंड जो है फ्यूचर में कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते हैं, कुछ ना कुछ नया अध्याय लिखते हैं। सो डिस्टर्ब्ड हैंडराइटिंग जो सब दिशा में जाता है, उनका माइंडसेट भी वैसा ही रहता है, और एक फेसबुक बन सकता है, एक व्हाट्सएप बन सकता है, कुछ तो नया इनोवेशन हो सकता है। तो पूरा जो अनसेटल्ड हैंडराइटिंग होती है, ये द साइन ऑफ ग्रेटनेस है, इट्स अ साइन ऑफ ग्रेटनेस। द अनसेटल्ड हैंडराइटिंग इज अ साइन ऑफ ग्रेटनेस। समथिंग great can happen through this mind because it comes from all directions, and उतना ही डिस्टर्ब्ड माइंड भी होता है बिकॉज इतना वेवरी होता है, इमोशनली थोड़ा सा लोग राइट ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो डिस्टर्ब्ड भी रहते हैं। लेकिन उतना ही डिस्टर्बेंस में जो है वाइल्डरनेस बोलते हैं उसको, इट इज कॉल्ड एज अ वाइल्डरनेस। जंगल में आप जाओगे तो कोई भी चीज जो है नीट एंड टाइडी नहीं है, मतलब ऐसा गार्डन में कैसा रहता है, सब ट्रिम करके एकदम स्ट्रेट, नीट एंड टाइडी, एकदम परफेक्ट, ऐसा पेड़ ऐसे खड़े रहते जैसे कि मार्च पास करके सब खड़े हुए, लॉन एकदम क्लीन, एकदम परफेक्ट ट्रिम किया हुआ। उधर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, उधर आपको आराम मिलेगा। क्रिएटिविटी जंगल में आती है बिकॉज क्रिएटिविटी में जो होता है डिस्टर्ब, पूरा का पूरा वाइल्डरनेस नहीं होता, कोई भी सिस्टमेटिक नहीं है, कैसे भी वो क्रीपर्स पड़े रहते हैं, दैट इज द माइंड। इसके लिए डेनमार्क में, बहुत सारे बड़े बड़े यूरोपियन नेशंस में डिस्कवरी इन्वेंशंस की हो पाते बिकॉज बच्चों के स्कूल्स जो होते हैं वैसे एक एटमोस्फेयर में होता है, राइट ब्रेन चलता है। तो डोंट वरी, नेगेटिव हैंडराइटिंग्स नहीं है, गंदा लिख रहा है इस दिशा में जा रहा तो नेगेटिव हैंडराइटिंग नहीं है। हाँ, बस उसके अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स है जो मैं डिस्कस करूंगा वो नहीं रहना चाहिए। लेट अस रिमूव दैट थिंग, लेट हिम राइट इन एनी डायरेक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड द चाइल्ड प्रॉपर्ली कि यार चलता है ऐसा ही माइंड कुछ ना कुछ तो बड़ा करके दिखाएगा। तो स्लांट we have covered. Now let us go to the next very important parameter into children's or every single person's handwriting, that is I and J. My friends, small I and small j will always have dots, है ना? I और J के ऊपर क्या रहता है? डॉट्स होते हैं, और ये डॉट किधर गिरने चाहिए? एग्जैक्टली अबव आई एन जे के बराबर ऊपर गिरना चाहिए। तो जिसका भी लिखते लिखते अभी सब लोगों ने हैंडराइटिंग लिखा रहेगा, उस हैंडराइटिंग में जहां जहां आई और जे आया रहेगा उसके बराबर ऊपर अगर गिर रहा है तो ये अच्छा साइन है, इट्स अ वेरी गुड साइन। मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग एल्स बट वेरी गुड फोकस। एकदम फोकस्ड माइंड ही आई और जे पे एग्जैक्टली डॉट डाल सकता है, परफेक्ट, एकदम फोकस्ड माइंड। अर्जुन सा निशाना, अर्जुन को हरे कलर के पेड़ के बीच में, हरे कलर के पत्तों के बीच में, हरे कलर के तोते का आंख दिखता था, अर्जुन को आंख दिखता था, क्या फोकस। और हमको तो पूरा पेड़ दिखता है, तोता तो दूर की बात है, किधर है सर तोता, आंख किधर है, कुछ मालूम नहीं, पेड़ ही देखो, फोकस नहीं है। People those who can put two dots exactly above I and J have a very focused mind, अवेयरनेस में रहते हैं। यानी कि अगर अब ये लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनका पूरा ध्यान ज्योग्राफी में रहेगा, पूरा ध्यान ज्योग्राफी में रहेगा। अगर आप उन लोग जो सामने अगर बैठे जिसके आई और जे पे डॉट से पूरा ध्यान ग्राफोलॉजी में रहेगा, एकदम एकदम नजर लगा के बैठे रहेंगे, वो एकदम एकदम चीते के जैसा उनका नजर होता है, एकदम परफेक्ट, वो एनिमल के जैसा। वो लायन होता है ना, जब वो अटैक करने का रहता है, उसको अटैक करने का रहता है, वो ऐसा पूरा ग्रास में बैठा रहता है, वो ग्रास में बैठकर अपना नोटबुक लेके बैठा रहता, कौन सी हिरन इसमें कमजोर है, ये देखो, ये बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। एक छोटा वाला हिरन है जो ताकतवर कम दिख रहा है, मुझे उसको पकड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ू कि उसको पकड़ू, इसको पकड़ू, उसको पकड़ू, पूरा फोकस्ड माइंड, पूरा ध्यान।
ऐसा घूम फिर के नहीं आता इधर उधर जाके चलो ठीक है देखते करके। इतना फोकस्ड माइंड उसका होता है, और बाद में पूरी स्टडी करने के बाद आधा पौना घंटा पूरी स्टडी करने के बाद फिर वो परफेक्टली झपटा मारता है और परफेक्टली उसी यूरन को पकड़ता है जिसमें उसने फोकस किया था, और उसको मार कर खत्म करके अपना प्रे उसको बनाता है। एकदम फोकस्ड होता है, ऐसे ही नहीं घुस जाता है चलो जाके कोई भी हिरन को पकड़ते, पहले इस हिरन के पीछे भागा फिर उसके पीछे भागा, बाद में थक के बैठ जाता है और बोलता है कि हिरन लोग को बहुत मस्ती चढ़ गई है, मैं शेर है मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा फोकस्ड वाले लोग ऐसा ही काम करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी हिरन खाना छोड़ दूं, घास खाना चालू कर दूं, ऐसा सब माइंडसेट। दिस पीपल आर वेरी फोकस्ड। इसका मतलब अगर मैं प्रैक्टिस करते करते आई और जे पे मैं परफेक्ट डॉट डालने लगा तो क्या मेरा माइंड फोकस हो सकता है? यस, 100%। अच्छा, इट इज ट्रू फॉर टीचर्स ऑल्सो, it is true for parents also, it is true for any person who is sitting on the opposite side and listening this। अगर आपको आपके काम में एकदम फोकस लेकर आना है तो आईआरजे पे डॉट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। एकेडमिकली बच्चों को अगर ग्रो करना है पढ़ाई में, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एमबीबीएस, एनी सच थिंग्स, इफ यू वांट टू डू पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, पढ़ाई से रिलेटेड लॉ करना है, सब चीज करना है, तो डॉट का होना बहुत जरूरी है। डॉट का होना बहुत जरूरी है। There are few certain more examples। अभी कुछ लोग के मन में आ रहेगा सर मेरा तो पीछे गिरता है, मेरा आगे गिरता है, थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। I cannot cover everything, but what is correct I'll cover। Few examples I will cover because I have very limited time, and I'll say the perfect I, which is the perfect one, which I've already mentioned, which is the perfect one। See the first one, dot पीछे गिर रहा है। See the second one, dot एकदम ऊपर गिर रहा है। See the third one, dot आगे गिर रहा है। See the fourth one, डॉट गिरता ही नहीं, ये भी पॉसिबल है। कुछ बच्चे डॉट डालने को भी भूल जाते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इट इज ट्रू फॉर एवरीवन। सो व्हाट इट इज अगेन, जो हम लोग ने लेफ्ट में जो जाता है उसको क्या कहते हैं? पास्ट। द पर्सन हु पुट्स डॉट इन द लेफ्ट इज बिहाइंड रियलिटी। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोकास्टिनेटर। प्रोकास्टिनेटर मतलब जो पीछे डॉट डालते हैं, ये टाइम पे बच्चे होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ये टाइम पे बड़े होने के बाद काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सबमिशन नहीं हो पाएगा। हमेशा प्रोकास्टिनेशन, आज करो सो कल कर, कल करो सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, मतलब बिंदास जीते हैं आराम से। प्रोकास्टिनेटर हमेशा डॉट जो है पीछे गिरते हैं। अब इधर जो सीनियर लोग है, जो एल्डरली पीपल है, अगर आपका जिस दिन काम, अगर आपका जिस दिन काम नहीं हुआ रहेगा, दिन भर में 10 काम अगर आपको मिला रहेगा और आपसे ना 4-5 काम आपका छूट गया है, एंड यू आर लाइक कॉन्शियसली यार क्या होगा, 3-4 काम नहीं हुआ है मेरा, और उस टाइम पे आप हैंड राइटिंग लिखना, गारंटीड आपके डॉट्स जो है पीछे गिरेंगे। बिकॉज आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या, काम हुआ नहीं, काम हुआ नहीं, प्रोकास्टिनेट हो रहा है ना, अभी तक हुआ नहीं हुआ नहीं, 100% डॉट पीछे गिरेगा। वो टेम्पररी है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी डॉट्स पीछे गिरते हैं ओनली बिकॉज कि आपका काम नहीं हुआ तो प्रोकास्टिनेशन पे चला गया। अगर ये हैंडराइटिंग में परमानेंटली डॉट्स पीछे गिर रहे हैं तो माय फ्रेंड इट इज हाई टाइम टू चेंज। सो पीछे की तरफ प्रोकास्टिनेशन, एकदम ऊपर डालना तो अनरियलिस्टिक, हवा में बात कर रहे हैं, यानी कि डॉट एकदम हवा में है, तो हवा में बात करने से काम नहीं चलता। तो आसमानी जो बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव में जो लोग रहते हैं वो एकदम ऊपर डालते हैं। अभी थर्ड वाला जो है राइट की तरफ जाता है। सो अगेन व्हाट इज राइट? फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक बंदा है, बहुत आगे की सोचता है, अहेड ऑफ रियलिटी, इतना फास्ट है कि अभी इधर की नहीं आगे की सोच रहा है। अगर समझो कोई भी आगे डॉट डालने वाले बच्चे इधर बैठे हैं, वो अभी उधर पहुंच गया, उधर पहुंच गया, उधर पहुंच गया, उधर पहुंच गया। इनको पिक्चर दिखाने लेके चले जाओ तो बोलते कि मुझे मालूम है एंड में क्या होने वाला है, क्या फायदा अभी बैठ के देखिए, इंटरवल में रिटर्न चले जाए। बिकॉज उनको आगे का दिख जाता है, आगे का दिख जाता है, वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सो फ्यूचरिस्टिक। इनके डॉट्स हमेशा आगे गिरेंगे। इनकी हैंडराइटिंग भी थ्रेडिंग रहेगी, थ्रेडिंग, इतना फास्ट लिखते कि स्क्रिबलिंग करते, फट फट फट, कंप्लीट अल्फाबेट्स भी फॉर्म नहीं होता, और इनका डॉट जो है बहुत आगे की तरफ गिरता है। इट इज अहेड ऑफ रियलिटी, बट बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं। उनको दूर का बहुत जल्दी दिख जाता है, बहुत दूर का, आगे क्या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं, आगे क्या क्या। तो मेरे एक बंदा जिसका डॉट हमेशा डॉट आगे गिरता है, तो मैंने उसको बोला मेरे पास 300 स्टूडेंट्स है मेरा कोचिंग क्लास में, और 25,000 रुपया में जो फीस है चार्ज करता हूँ, एवरेज फीस, इतने में उसने इतना बोलने तक उसने कैलकुलेट विलकुलेट करके, सर 15 लाख का आपको प्रॉफिट होता रहेगा ना। मतलब आई एम सेइंग हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने अपना एक्सपेंसेस नहीं बताया, वो उधर जाके कैलकुलेट करके सब कुछ रिटर्न है। सो फास्ट इन्वेस्टिगेटिंग एबिलिटी, ये जो डॉट्स जो है आगे गिरते हैं उनके अंदर रहता है।
और मेरे दोस्तों लास्ट वन क्या रहेगा, ये डॉट ही डाला नहीं, मतलब एब्सेंट माइंडेड, इट्स नॉट गुड। कंपोस्ट बॉक्स भूलना, नोटबुक भूलना, वाटर बॉटल भूलना, बैग भूलना, और एक दिन अपने आप को ही भूल जाना, भूल जाते हैं। क्लासरूम में मैं पूछता हूँ बच्चों को, कंपोस्ट बॉक्स लाए हो, तो बाजू वाले को देखेगा, लाया है, मतलब खुद कभी लाता नहीं है, घर पे भूल कर आया हो, एक बार खुद को भूल कर आ जाएगा, एक बार डैडी का बैग उठा के लेकर आ जाएगा, और बाद में पता चला वो तो डैडी का था, घर स्कूल का बैग लेकर आ जाएगा। एब्सेंट माइंडेड, ये काफी सारे लोग, ये अगर डॉट्स नहीं डालते, बड़े होने के बाद लैपटॉप भूलते हैं, लैपटॉप मैंने देखा है लोगों को भूलते हुए, अपने जो है वॉलेट भूल जाते हैं, मोबाइल फोन भूल जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड, चीजें भूल जाते हैं। स्ट्रेस वाला माइंड है जिसमें डॉट्स के एब्सेंस होने से, तो इसका मतलब मैं डॉट डालूंगा तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। 100% प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैं एंड में एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम में आपको बताऊंगा। तो ये आई आपको समझ में आया, तो व्हाट इज अ परफेक्ट आई। अभी और दो और एग्जाम्पल है। कुछ लोगों को आपको सामने ऐसा लगता रहेगा, इसमें से कुछ लोग डॉट के जगह पे सर हम तो सर्कल डालते हैं। Yes, there are certain people, those who put circles. Anyone in the audience, anyone who is putting circle, chat yes, yes or yes chat करो। कोई भी अगर है वहां पर सर्कल डालने वाला, yes, yes। और जो भी yes लिखेगा ना, वो सब के सब फीमेल्स रहेंगे, all will be female। फुल 95-98% फीमेल के हैंडराइटिंग में समटाइम्स आता है, समटाइम्स जाता है। चलो ध्यान से सुनना। नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, यस समटाइम्स, यस समटाइम्स, यस यस यस, फीमेल्स में ही सबसे ज्यादा आता है। सन में अगर आया है तो नहीं, नेगेटिव नहीं है, दिस इज नॉट नेगेटिव ट्रेड, बट इट्स डिफरेंट एज समटाइम्स, यस। चलो ध्यान से सुनो सब लोग, एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क राइट नाउ। नाउ so many years back, years sometimes, ध्यान से सुनो अभी, listen carefully। there are two handwriting samples in front of me। मेरे पास दो handwriting sample है। एक में वो बंदे ने लिखा है, और जहां जहां आई और जे है, जहां जहां आई और जे है, उसने डॉट डाला है, डॉट डाला है। सो फर्स्ट हैंडराइटिंग सैंपल इज द सैंपल विद द डॉट्स। सेकंड हैंडराइटिंग सैंपल जहां जहां आई और जे है, उसने सर्कल्स डाले हैं। तो सेकंड हैंडराइटिंग सैंपल इज द सैंपल विथ सर्कल्स, सो आई विल कॉल इट सैंपल विथ सर्कल्स and sample with dots। So my question is, which sample will be attractive? Which sample will be attractive? Sample with dots or sample with circles? Type in your chat box। Sample with circles or sample with dots will be attractive. The question was attractive। Yeah, I want more answers। Think, no problem। With circle, with dot, depends on the writer। Oh, very diplomatic answer। Attractive, acha, so majority of you have typed circle and few of them have typed dots, no issues। Again, there is nothing right or wrong, always an answer needs to be given, rather it is right or wrong। So my friends, the sample with circle will grab your attention, dots will not grab your attention। वो सर्कल जब बनते हैं ना पेपर में, आपकी नजर बराबर उस सर्कल पे जाएगी। ये ऐसा कैसा हैंडराइटिंग है जिसमें ऐसे सर्कल्स आते हैं? सो ध्यान से सुनना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग सर्कल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग सर्कल्स? यस, अटेंशन सीकर्स। Attention seekers, the people, those who put circles are attention seekers। So they will be into so many things: dance, drama, acting, singing, and all those platforms they will try to use those platforms to grab the attention of the crowd। They will do something or the other thing, they will grab the attention। तो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये सर्कल वाले बहुत आगे रहेंगे। और इस सर्कल का मतलब है दे लिव इन ख्वाबों की दुनिया। ऊपर जो सर्कल है, ऐड सुना रहेगा आपने, मन में लड्डू फूटा है आसमान में,
मन में लड्डू फूटता है. So they are in a very world of imagination world में उन लोग रहते हैं. And जो डॉट्स डालते हैं वो फोकस्ड वाले रहते हैं. So I'm saying that is right and this is wrong. No, दोनों की अपनी पर्सनालिटी है. वो पूरा फोकस करके अपनी पढ़ाई को बहुत आगे तक लेके जाएगा. फोकस्ड माइंड है. ये जो माइंड है ये बहुत ही अलग लेवल पे सोचता है. ड्रीम्स बहुत रहते हैं, बहुत ड्रीम करता है और अटेंशन ग्रैबिंग होती है इनका पूरा का पूरा पोटेंशियल. दे विल बी गुड इन ऑल दोस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. तो मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ कि ठीक है यार, सर्कल डालता है बच्चा ये सब चीज में आगे है, लेट हिम कंटिन्यू विद दैट करियर. थोड़ा सा कम पड़ेगा या कम मार्क्स आएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. फिर भी पेरेंट्स मुझे बोलते हैं नहीं सर 10वीं है, बोर्ड एग्जाम है, रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं बोलता है काम करो 10th स्टैंडर्ड में सबसे डॉट डलवा देना. 10th स्टैंडर्ड हो जाए, बाद में ग्रेजुएशन की तरफ जाए, 2 बोर्ड एग्जाम के बाद में इसको सर्कल डलवा देना. Just because this is also a very good trait. This will always help you to grab attention and this personality. Film industry में जितने भी actors and actresses रहेंगे सबके हैंडराइटिंग में सर्कल्स रहेंगे. 100% सिग्नेचर में कहीं ना कहीं तो दिखेगा. डायरेक्टर लोग के हैंडराइटिंग में सर्कल नहीं रहेगा, उनके हैंडराइटिंग में डॉट्स होंगे बिकॉज वो फोकस्ड होते हैं. लोग तो अपने आप को सजाते भी नहीं, एकदम शैबी रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन हाउ दे लुक. दे फोकस ऑन द वर्क ऑफ डायरेक्शन ऑफ गेटिंग accuracy into production and everything. So उनके डॉट्स होने के इनके सर्कल्स रहेंगे. So both the dot and circles are okay. इसमें एक और आता है, थोड़ा सा एक और सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ. कुछ लोग क्या करते हैं, they go to one step ahead, they put hearts. मतलब क्या है, सर्कल नहीं बनाते, वो हार्ट्स बनाते नहीं, वो बन जाता है. इट ऑटोमेटिकली वो फॉर्म हो जाता है. तो इसको क्या कहते हैं, लव इज इन द एयर. मतलब क्या है, द पर्सन इज आस्किंग फॉर लव. मतलब शायद उसको लव नहीं मिल रहा है, शायद पेरेंट्स से, शायद फैमिली मेंबर्स से. द पर्सन इज सिंबॉलिकली आस्किंग फॉर दैट. या फिर कुछ ना कुछ तो इसके बारे में काफी थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसको मालूम भी नहीं. द पर्सन इज राइटिंग दिस. एंड राइटिंग में इतना नेचुरल, इतना सबकॉन्शियसली आ जाता है. मुझे तो बहुत सैंपल्स मिले 21st सेंचुरी में. बच्चों के बहुत सैंपल्स ऐसे हार्ट वाले होते हैं. लव इज इन दी एयर, काहीतरी चालला है, मराठी मध्ये हम लोग इधर बोलते हैं. कुछ तो चल रहा है मन में, जो है ये होता है. तो ऐसे हम लोग पकड़ लेते हैं बच्चों को कि अच्छा दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. ये ठीक है, टेम्परेरी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज लाइफ में बहुत सारे दूसरे भी काम करने हैं. लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू. सो व्हाट इज द राइट टाइप ऑफ INJ which we already discussed. Let us conclude on INJ. So what we advise, we don't enforce, we advise INJ पे dot और INJ पे सर्कल्स. अभी सर्कल डालने से अटेंशन ग्रैब करते तो कुछ बच्चे बहुत बड़ा सर्कल डालते हैं. बिग, वेरी बिग इज नॉट इम्पोर्टेंट. स्मॉल परफेक्ट एक सर्कल. कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा रहेगा वो गलत रहेगा, ये आपको सबको समझ में आता है. कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा है, दैट मींस इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. सो कुछ भी एक्सेस नहीं करना, एकदम प्रोपोर्शनेटली सर्कल डालना, विच इज गुड. तो कभी समझो किसी को लॉ पढ़ना है तो डॉट डालो. लॉ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना है, कोर्ट में मस्त में बात करना है ताकि लोगों को तुम्हारे इस नॉलेज से ग्रैब कर सके तो आप सर्कल डाल सकते हैं. सो दिस शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. कुछ लोग के हैंडराइटिंग में दोनों रहेगा, गुड, वेरी गुड, नो इश्यूज. उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी है, उस हिसाब से आपका जो है करियर बन सकता है. वी एनालाइज हैंडराइटिंग एंड वी टॉक अबाउट द करियर आल्सो बिकॉज वी नो कि विच करियर विल सूट विच पर्सन थ्रू द हैंडराइटिंग आल्सो. साइकोमेट्रिक्स से भी करियर होता है, हैंडराइटिंग से भी करियर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. सो दिस इज वन. नाउ समवन वाज टॉकिंग अबाउट कैपिटल आई. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट, कैपिटल आई. और कैपिटल आई इज कॉल्ड एज, इसके लिए मैंने सबसे जो है लिखा के लिया PPI. सो व्हाट इट इज कॉल्ड एज PPI मींस पर्सनल प्रोनाउन आई. ये आई कौन है, ये मैं हूं. दिस इज मी, आई है ना, आई, मैं, इट इज मी. सो ये आई हैज 3 पार्ट्स. ध्यान से देखना, आई हैज 3 पार्ट्स. सब लोग का स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए. सबको दिखा 3 पार्ट्स. The middle stem, the middle standing stem is called as the self. So middle वाला stem है वो आप हो. Upper crossbar, जो ऊपर की तरफ crossbar form हुआ, that is connected to the mother. Lower crossbar is connected to the father. So there are 3 parts. The middle stem, that is you. Upper crossbar is the mother.
lower crossbar is the father. Lower crossbar is the father, upper crossbar is the mother. ये तीन चीज है. So understand what is I. देखो हम लोग ध्यान से. Again, so this is I. Perfect. अब समझ में आया. So the middle part, the stem, the standing stem is you yourself. Upper crossbar is the mother and lower crossbar is the father. Now let us see 2 to 3 examples. Zyada nahi, because there are 20-25 different various varieties of I. I will only speak few wrong ones, means shortcomings wale, and I'll speak about the right I, which needs to be done. So let us see this example. See the first one. And type in your chat box what you can observe in the first one. Type in your chat box. Disconnected. Okay. Not close to mother and father. Kya baat hai? Means all are expert here already. Shall I stop the training? Self-dependent. Okay. Self line is not touching father line as well as mother line. Maintain distance, not connected to people. Yes. Stem is not connected to mother and father. Absolutely right. Now, this is something we need to observe. Yeah. Everything. So crossbar not touching the stem. The crossbar not touching the stem. Upper stem is mother and lower stem is father. So this person, this child or this person will be emotionally detached from parents. रहेंगे साथ में, but वो attachment emotional नहीं होता. कहीं ना कहीं the parents might be very busy in their work or day-to-day schedule. होता है, काफी सारे जन के घर पे होता है. Both the parents are working, and what has happened in today's world is like we are just behind, like बहुत challenges आ गए हैं, यानी कि we have to compare ourselves with the people around. मैंने कुछ दिन पहले जो है हार्मनी विद इन द फैमिली करके IES यूनिवर्सिटी के लिए एक टॉक लिया था, जिसमें हार्मनी विद इन द फैमिली, इसके ऊपर मैंने काफी पॉइंट्स चर्चा किए थे. So what has happened this 21st century is the world of capitalist economy where everything has been defined in terms of money and everything, relationship जो है. So उस होड़ में कहीं ना कहीं हम सब रोजमर्रा जिंदगी से टाइम नहीं निकाल पाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ जो हमारा रुख है थोड़ा सा कम हो जाता है. इज इन लिटिल डिफरेंस इन वर्क एंड एवरीथिंग. इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो कडलिंग होती है, जो पैटिंग होती है, जो हगिंग होता है, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. और जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होती है, जो बचपन में बच्चा जो छोटा रहता है उसको 150 पप्पी देते हैं, 1500 हग देते हैं और इतने बार उसको हक करते हैं पेरेंट्स कि उस टाइम पे उसको बहुत अच्छा लगता है. जैसे जैसा ग्रो होता है कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और एक वक्त आने के तो पेरेंट बोलता है दूर बैठ, क्यों आंख पे आ रहा है, सिट एट वन प्लेस, यू कैन सी आई एम डूइंग दिस वर्क एंड ऑल. तो बच्चा बचपन में बोलता है बचपन में तो बहुत देते थे हग वगैरह सब, अभी क्या हो गया, कमी कहाँ से हो गई. कहीं ना कहीं ये जो दूरियां हो जाती है, कहीं ना कहीं वी जस्ट गेट एनग्रॉस्ड इनटू आवर डे टू डे लाइफ, वी फॉरगेट. मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं इफ यू वांट अ वेरी पावरफुल चाइल्ड 12 टाइम्स हग देम इन अ डे. हक करो उनको 15 बार, और जो 8 बार करेंगे तो एवरेज चाइल्ड रहेगा, और 3-4 बार करेगा तो एकदम कमजोर बच्चा बनेगा. तो काफी पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, वो अभी तुरंत जाके अपने बच्चे को हक करेंगे ऐसा दोनों हाथों से. चलो 15 दिन का, ये 15 साल का जो बाकी आज एक ही दिन में मैं खत्म कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना. बच्चे से उठा के फेंकेगा, बोले सडनली क्या हो गया, अभी मत. इट शुड बी देयर, दैट्स पैटिंग. छूने से प्यार फैलता है. वो थोड़ा सा सर पे हाथ घुमा दिए. मैं जो कमजोर बच्चे जो मेरे होते थे, मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को मैंने बहुत पढ़ाया. ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया, किस तरीके से उनको सुधारा, बस ऐसा ही. बस एक हाथ घुमाता था, पीठ के ऊपर एक थाप दे देता, बीऊ नकोस में तुझा पार्टीश है, डर मत मैं तेरे साथ हूँ, एंड जस्ट एक छोटा सा शाबाशी इसको दे दिया. एंड आई कैन सी यू कैन डू माय चाइल्ड बोल गया था. खतरनाक 58%, 68%, फिफ्थ फेल ने 72% लेकर आया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टच. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टच. एक छोटा सा बच्चे को मैंने ये कर दिया, तो पेरेंट्स से ये बहुत जरूरी है. ऐसे बच्चे जब अब मतलब 99% चांसेस है ये बच्चे जो है पेरेंट्स को छोड़कर चले जाएंगे, बिकॉज अलग रहेंगे, बिकॉज दे वांट देयर फ्रीडम, बिकॉज घर में उन्होंने अच्छा पेरेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे, पेरेंट्स आर गोइंग आर माइट बी वेरी मच वंडरफुल, बट द बिहेवियर इज मेकिंग द चाइल्ड टू थिंक दैट यहाँ पे प्यार की
बहुत कमी है. सो टच होना बहुत जरूरी है. सो विच इज द राइट वन समझ में आ रहा है. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. द सेकंड वन, type in the chat box what you can observe here. What you can observe here, chat in the type in the chat box. इस सेकंड वाले में ध्यान से देखेंगे क्या दिख रहा है आपको. Yes, what you can observe. Yeah, can you see observation? देखो क्या है. टच हो रहा है, नहीं टच हो रहा है, क्या हो रहा है. या ओवर क्लोज, वेरी क्लोज, या मोर क्लोज. ठीक ठीक. हाँ, now what is happening? Observation क्या है? What is the observation? कि it is going cross. Are they attached? Yes, they are attached, but it is going cross. Anything going cross का मतलब cross है. मेरा cross है. Crossbar cutting the stem. Crossbar cutting the stem means it is going cross. So if anything going cross means difference of opinion. लव एक्सेसिव होने की वजह से, एक्सेसिव लव होने की वजह से ये क्रॉसिंग होता है. क्रॉसिंग उसका मतलब क्या? अटैचमेंट उतना ही है, अटैचमेंट उतना ही है, लेकिन क्या होता है कि इट इज गोइंग क्रॉस. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये बोलेंगे तो वो करेगा, वो बोलेंगे तो ये करेगा. बस एक दूसरे के इंटरफेरेंस, मतलब इट हैज क्रॉस्ड द लिमिट, इट हैज क्रॉस्ड द लिमिट. सो व्हेन एनीथिंग क्रॉसेस द लिमिट, उसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिक कम हो जाती है. एंड देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहीं पे स्टार्ट होता है. सो ऑलवेज देयर शुड बी अ स्मॉल, लाइक वो टच होना ठीक रहता है. टच हुआ ठीक है, टच हुआ ठीक है, इट्स ओके. बट क्रॉस हो गया तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा. सो दैट इज द सेकंड वन. मतलब थोड़ी सी एग्जांपल्स में शेयर कर रहा हूँ. तीसरा वाला अगर है तो डोंट स्टार्ट थिंकिंग डीप इनटू दिस. दिस अ नेगेटिव वन. अगर ये है तो इसको चेंज कर देना, इसको सीधा निकाल देना. उसके लिए मुझे 1-to-1 आपसे बात करना पड़ेगा. जस्ट आई एम शोइंग दिस थिंग इज बिकॉज दिस अ कर्सिव आई. ये कर्सिव आई है, ये नॉर्मल कर्सिव आई नहीं लिखा है. मदर के ऊपर बराबर लूप है, ऊपर की तरफ बराबर लूप है, बट जैसे नीचे आता है इट इज फॉर्मिंग अ क्लॉ. कैन यू सी ए कर्वेचर? इट इज फॉर्मिंग अब्रप्ट स्मूथ कर्व ऑन द लेफ्ट साइड. ऊपर से पेन नीचे आएगा, नीचे आने के बाद लेफ्ट के तरफ एक कर्व बनाएगा. इट विल फॉर्म अ कर्व ऑन द left side. It will make a curve on the left side. So this is a negative eye. If anyone is carrying that, don't worry about it. It can be removed. एक over a period of time ये eye form होता है. वो देखना पड़ता है कितने बार आया. एक ही बार आया तो it's okay. It can be removed immediately. बहुत बार है तो वो भी हमको देखना जरूरी है. तो यहाँ पे मदर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फादर के यहाँ पे चैलेंज है. फादर, the behavior of the father is not good at home, because of which the child is thinking, and this pattern is coming in his mind also. ये pattern उसके अंदर भी आ रहा है. What is this pattern? This pattern is the pattern of cheating mindset. इसको हम लोग cheating mindset कहते हैं. बार बार उसके माइंड, दिमाग में, घर के सामने, घर में चीटिंग की बातें होती है, ये सब चीज चलता रहता है. और वो बच्चे के अंदर और वो बंदे के अंदर भी ये माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. फ्यू ईयर्स बैक मेरे पास कुछ 180 सैंपल्स थे. उसमें से मैंने देखा 70-80 सैंपल्स में ये वाले जो है क्लॉ वाले आईज मैंने देखे हैं. उसमें से 70-72 सैंपल्स गर्ल्स लोग के थे. मींस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट वेरियस होम, कि जहाँ पर ये इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है चीटिंग की, तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ये जो भी -9 months to 14 years हमारे घर में, हमारे परिसर में जो थॉट प्रोसेस ज्यादा दिखेंगे, वो थॉट्स वर्ड्स बनेंगे. विचार वर्ड्स बनते, वर्ड्स एक्शन होने लगता है. रिपीटेड एक्शन हैबिट बनना स्टार्ट होता है, और हैबिट फाइनली वो बंदे का कैरेक्टर बन जाता है. थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, हैबिट एंड कैरेक्टर. थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर. अच्छे थॉट्स, अच्छे वर्ड्स, अच्छे वर्ड. सत्संग कहते हैं, सत्संग. सत्संग का मतलब संतों के बीच में बैठना नहीं होता. सत्संग का मतलब अच्छे विचारों के संग, अच्छे विचारों के संग. कौन सी विचार हम देख रहे हैं? सत्संग. सो थॉट्स बिकम वर्ड्स, words become action, action repeated becomes your habit, and habit becomes your character. So this is a negative trait. Second one is not also good, first one is also not good. So which is the right one? So we always advise the first one, which we discussed before when we started. Perfect stem straight, वो थोड़ा lean left चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. A
अपर क्रॉस बार जस्ट टचिंग, लोअर क्रॉस बार जस्ट टचिंग. ये परफेक्टली इसको कहते हैं, व्हाट वी एडवाइज इज अ परफेक्ट आई. अगेन that's it. Self is self, that is stem, upper cross bar is mother and lower cross bar is father. So this is what if the curve is upside, it's okay. ये ऐसा कर्व नहीं जाना चाहिए जो ऐसा आके ऐसा जो क्लॉ फॉर्म हुआ नहीं, ऐसा नीचे आके लूप ऐसा ऊपर जाके टच होगा, नो इश्यूज. सो दिस इज अ नेगेटिव. रेस्ट उसमें बाकी सब में इतना चले. ये 3 नहीं रहेगा तो चलेगा. एक दो और नेगेटिव है, लेकिन परफेक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया. तो बाकी सब चीज बिकॉज आई हैव 1 hour 30 minutes वो भी शायद एक्सटेंड हो जाएगा बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स मुझे, और 10 minutes आई थिंक सो आई माइट रिक्वायर मोर टू डिस्कस मच मोर अबाउट इट. नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर माय फ्रेंड्स. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है. दिस द क्रक्स, यानी कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, और बच्चों लोग के हैंडराइटिंग में सबसे पहला मैं यही डिस्कस करता हूँ. दैट इज जोन्स. जोन्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम सब लोगों ने रेड एंड ब्लू लाइन में बचपन में लिखा था. सब लोग लिखते हैं रेड एंड ब्लू लाइन में. द मोमेंट रेड एंड ब्लू लाइन रहता है, इट डिवाइड्स दिस इनटू 3 zones. फर्स्ट जोन, second zone and third zone. So let us take an example here. I am going to write one word here, hand. सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे. ये जो है अभी जैसे ये हैंड लिखा, ये हैंड लिखा, तो इसमें कुछ तो कमी आपको महसूस होती रहेगी. There is something which is missing. If you can type in your chat box what you can observe, what is missing, थोड़ा सा आप सोच समझ के चैट बॉक्स में टाइप करेंगे क्या मिस हो रहा है, क्या कमी महसूस हो रही है इस हैंडराइटिंग में. और ये हैंड वर्ड में लिखते वक्त आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ तो कमी आपको यहाँ पर दिखेगी. इफ यू कैन चैट टाइप इन द चैट बॉक्स, इट वुड बी वंडरफुल. अल्फाबेट्स आर नॉट कनेक्टेड, चलो ठीक है, बट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द जोन्स, है ना. तीन जो बेल्ट बना हुआ है उसके हिसाब से आप जरा चेक कीजिए. The words are not closer, ठीक है. I'm talking about the 3 zones, H and D, unequal heights. Very good, very near. Yes. H and D, not touching the upper red line, not touching the upper red line. Very good. सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे. H and D का जो स्टेम है वो रेड लाइन को टच होना चाहिए था. Yes, it is not touching the red line. It is not touching the red line. Very important. So what it is? A mixture of cursive and print writing. यहाँ पे हम लोग cursive नहीं, हम लोग stems के हिसाब से देख रहे हैं. Very fine. There are a lot of cursive handwritings and जो है. So let us see it carefully. सब लोग ध्यान से देखेंगे. तो ये क्या है? H and D not touching the red line. Very good. Now what is this? ध्यान से देखेंगे. This is the upper zone. This is the middle zone, and this is the lower zone. Upper, middle, and lower means what? ध्यान से देखना. This is nothing else but you. ये आप हो. This is you. Upper zone is the intellect. Upper zone is the intellect. Middle zone is heart and stomach. Heart and stomach, बीच वाला हिस्सा. And lower zone is the lower part of the body, which include the sex organs and all the working organs, the legs and everything. That is the lower zone. तो लोअर जोन से फिजिकल फिटनेस सब पता चलता है, डिजायर्स के बारे में पता चलता है, रिलेशनशिप कैसा मेंटेन करेगा. मिडिल जोन इज हार्ट एंड स्टमक, पेट और दिल, और अपर जोन इज इंटेलेक्ट. सो इफ यू सी केयरफुली इन दिस हैंडराइटिंग माय फ्रेंड्स, एच एंड डी का स्टेम का हाइट थोड़ा सा कम है. That means this person is not touching in the upper zone completely. यानी कि इंटेलेक्ट को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा है. अगर मैं मेजर करने जाऊंगा तो मिडिल वाला जो साइज है एच ए एंड डी जो है उसका साइज बड़ा है और अपर स्टेम का साइज छोटा है. सो एज कंपेयर टू द मिडिल जोन, अपर जोन, द मिडिल जोन इज डोमिनेंट. सो दिस हैंडराइटिंग इज अ मिडिल जोन डोमिनेंट हैंडराइटिंग, जहाँ पे हार्ट एंड स्टमक, दिल ने कहा पानी पूरी, दिल ने कहा चाइनीज बिल, दिल ने कहा मोबाइल फोन, दिल ने कहा पबजी, दिल ने कहा घूमने जाना, दिल कहा वो सुनेगा, पेट कहा वो सुनेगा, दिमाग क्या कहता है वो सुनने वाला नहीं है. एक 21st सेंचुरी में मैंने देखा है काफी बच्चों के हैंडराइटिंग्स में, मैं तो बोलता हूँ 70 से 80% बच्चों के हैंडराइटिंग्स में
एच और टी पे स्टेम नहीं होते हैं। एक एच और एन पता ही नहीं चलता एच लिखा है कि एन लिखा है, बिकॉज स्टेम ही एब्सेंट है, एच का स्टेम ही एब्सेंट है। डी भी नहीं पता चलता, डी ए के जैसा लिख देता है, ऐसा लगता है ए लिखा है क्यों लिखा है, स्टेम ही नहीं पता चलता। अपर स्टेम्स डालना ही वो जाता ही नहीं ऊपर, द पेन इज नॉट गोइंग अप, मिडिल जोन से पेन ऊपर ही नहीं जा रहा। टू टेक द पेन अप it require efforts, to go to the intellect it require efforts, and human being has been gifted with intellect, 100 billion neurons, every single neuron has 52 GB dendrites, neurons firing, wiring, using of this powerful intellect is not been done properly. The reason behind this is every single day we have been bombarded more with emotional data, emotions, gabrahat, fear, anxiety, all the serials whichever we see across whatever the television channels or mobile phones or whatever we see, it's filled with emotions इतने emotions है। तो मेरे मेंटर कहते हैं कि अनफिल्टर्ड इमोशंस, फिल्टर करके क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना, या भी जिस बम्बार्ड न्यूज चैनल्स के थ्रू भी हमको बहुत सारे इमोशनल डेटाज आते हैं, और सिंपल सा कहानी सिंपल सी चीजें बतानी, उसके अंदर भी बहुत ही मसाला लगाकर बुश का बम, सद्दाम का दम, जंग के मैदान में आज तक हरदम, ऐसा करके बहुत सारे इमोशनल चीजें जो है अलग स्टाइल में बोलते हैं। दैट इज देयर वे ऑफ सेलिंग, बट व्हाट हैज हैपेंड इज गेट एक्सपोजर टू so many things in front of us कि what has happened कि इमोशंस ज्यादा चलता है, इंटेलेक्ट चलता नहीं है, और स्टेम्स माइनस होने लगते हैं, बहुत ही मुश्किल से स्टेम ऊपर जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनका भी मैंने हैंडराइटिंग एनालिसिस करके ये स्टेम्स को बदले हैं, पेरेंट्स का जबरदस्त रेस्पॉन्स आया कि सर बच्चा भी बहुत अलग लेवल पे सोच रहा है, बट दिस रिक्वायर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है स्टेम्स को ऊपर लेके जाना। विच आर द स्टेम अल्फाबेट्स, बी डी एफ एच, the K, L and T. These are the stem alphabet which goes up. ये सब stem alphabets को जो है stem अच्छी तरह से आ जाएंगे ऊपर की तरफ तो क्या फर्क पड़ेगा। Let us see two examples to identify कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। अभी फर्स्ट वाले को देखेंगे, मिडिल जोन का साइज ज्यादा है, टी और एच के स्टेम्स कम है। सेकंड वाले को देखेंगे तो परफेक्टली टी और एच का हाइट जो है अच्छा खासा है मिडिल जोन के हिसाब से। सो व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अर्ली टू अर्लियर स्टेज 5th 6th 7th स्टैंडर्ड, बचपन में तो 4 लाइन बुक में लिखा जाता है जिसमें बैलेंस्ड होता है, बैलेंस भी ठीक है, इफ इट इज बैलेंस देन ओके, लेकिन बैलेंस से बेहतर हम लोग सजेस्ट करते हैं, व्हाट वी सजेस्ट इज मिडिल जोन का अप्रोक्सीमेटली डबल अपर जोन होना चाहिए, मिडिल जोन का डबल साइज अपर जोन का होना चाहिए। सो इंटेलेक्ट अच्छी तरह से यूज किया जाएगा, मिडिल जोन को काबू में रखा जाएगा, मिडिल जोन को काबू में रखा जाएगा, और इंटेलेक्ट बहुत अच्छी तरह से चलेगा। राइट एंड रॉन्ग के बीच का डिफरेंस मिडिल जोन आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि अभी एग्जाम से, तो एग्जाम अगर 2 महीने के बाद है तो 15 दिन पहले या 4 दिन पहले या 7 दिन पहले दिमाग बुक निकाल के नहीं पढ़ना चाहिए। उस जो एग्जाम में जो 15 चैप्टर उसमें से एक चैप्टर आज मैं पढ़ूंगा तब जाके मैं उस दिन का एग्जाम लिख पाऊंगा, तो आज की तैयारी अभी करनी चाहिए। तो इंटेलेक्ट जब चलता है तो बच्चा क्या करता है, रोज का पढ़ाई रोज कंप्लीट करता है। जिसका इंटेलेक्ट नहीं चलता है उसको जमा करके रखता है। दिल ने कहा पबजी खेलना है तो घंटों तक पबजी खेलेगा, दिल ने कहा टीवी देखना है तो दिल ने कहा दोस्तों के साथ गेम खेलते बैठना है तो ये चलता है। दिमाग क्या कहता है, टीचर ने बोला है कि रोज की पढ़ाई रोज खत्म होनी चाहिए, 2 ही घंटा पढ़ के रख देगा तो every day one chapter can be finished, and over a period, over a week all 7 chapters can get finished, and Saturday Sunday में रिवाइज कर दूंगा तो सेकेंड लेवल पे चला जाएगा और एग्जाम तक मुझे कुछ भी टेंशन रहेगा नहीं। और जो दिल की सोचता है वो पेंडिंग रखता है और एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ने की कोशिश करता है, एंड somehow the people those who can write the stems they will be using their intellect to a very great extent, वो लर्न करेंगे, हाईएस्ट लेवल पे आगे पढ़ाई कर सकते हैं। इट इज अ वंडरफुल हैंडराइटिंग। आई ऑलवेज प्रीफर द पीपल टू पुट their upper zones up, बहुत इंपॉर्टेंट है जोन्स को बैलेंस करना। दिस इज एन अल्टीमेट वे यू कैन बैलेंस इट। साइज भी मैंने आपको बता दिया, द राइट वन, द सेकंड वन जिसमें स्टेम जो है मिडिल जोन से अप्रोक्सीमेटली डबल होता है। सो फर्स्ट वन इज नॉट राइट, द सेकंड वन इज द पर। इतना बड़ा नहीं है, मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया बिकॉज दिखने में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपके साइज ऑफ हैंडराइटिंग के हिसाब से उसको डबल कर देना। Next important parameter, 10-15 minutes more from my side. So what we don't advise, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, what we don't advise, अभी ये बहुत important है, सभी बच्चे और सभी parents इसको अच्छी तरह से समझेंगे। This is called as D, this alphabet is D. This D and the second D which I am going to show here, both the Ds are not good, दोनों भी D अच्छे नहीं है।
दोनों को इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे. वी डोंट एडवाइस. ऐसा डी रहेगा तो तुरंत निकाल देना. वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एवरी सिंगल पर्सन. अभी फर्स्ट वाला डी देखो. वी स्टार्ट हियर. पेन कहाँ से स्टार्ट होता है ध्यान से देख लेना, बिकॉज ये ऑनलाइन लेक्चर है तो मैं आपको बना कर नहीं दिखा पा रहा हूँ. मैं इसके अंदर जो है एनिमेशन के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो हमारा पेन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना. वी स्टार्ट हियर. फिर ये देखो ये पेन ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके लूप बना के वापस नीचे आएगा. समझ में आया? नरेश शो इट वंस अगेन. वापस एक और बार सब लोग देख लेंगे इसको अच्छी तरह से. पेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसा गया, इट विल गो अप, मेक अ लूप एंड कम बैक. सो इसको बोलते हैं डी विद अ लूप एट द टॉप. सो ये क्या है? सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म. द पर्सन इज वेरी सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म. किसी के सामने या किसी के सामने इनको डांट दो, फिर आपका मकसद था ये बंदा सुधरना चाहिए, फिर वो 200 साल तक नहीं सुधरेगा, बिकॉज ही इज वेरी सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म. सेंसिटिव. और तुमने डांट दी. तो मैं एज ए टीचर जब भी बच्चों की हैंडराइटिंग में डी में लूप देखता था, मैं उनको डांटता ही नहीं था क्लास में. उनको अलग लेके ब्रेक में वगैरह कहीं पे मिल गया तो मैं उसको पूछता था, बेटा क्लास में तू क्या कर रहा था? वो थोड़ा बहुत मैं देखा तू कुछ कर रहा था वहाँ पे. बोले नहीं सर, वो एक्चुअली वो मस्ती किया, तो मैं भी थोड़ा उसको समझा दिया, हम लोग मस्ती कर रहे थे. तो इमीडिएटली उसके दिमाग में आएगा. फिर मैं उसको पूछूंगा, बेटा वाज इट राइट और रॉन्ग? तो बोले नो सर, मैं आइंदा नहीं करूँगा. ऐसा क्यों बोलता है? उसके दिमाग में क्या आता है? अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, सर ने सबके सामने मुझे नहीं डांटा. ही इज वेरी सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म. और मैक्सिमम टाइम पे हम सबसे गलती हो जाती है कि सबके सामने सबको डांट देते हैं. हमको सबको ना सबके सामने सुनाने को बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्ट दे देते हैं. बिकॉज हमको भी डायरेक्ट मिला था तो हमारी बारी है भी डायरेक्ट देने की. एंड हियर वी फेल. सेंसिटिव, जिसमें लूप जितना बड़ा, अभी कम लूप है सो लिटिल बिट सेंसिटिव, थोड़ा बड़ा. कुछ लोग को इतना बड़ा लूप होता है, हाइपर सेंसिटिव टू पर्सन. थोड़ा सा कुछ बोलेंगे तुरंत गुस्सा, तुरंत गुस्सा. अब ये जो डी है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में है. 21st सेंचुरी में तो ये डी बहुत ज्यादा दिखता है. स्टूडेंट्स के इंसान में भी आ गए. किसी को भी किसी का डांट पसंद नहीं आता, या कोई तुमको सुधारने के लिए बोलता है तो नहीं समझ में आता, एंड बिकम वेरी सेंसिटिव. ऐसा कैसा उसने सबके सामने मुझे बोल दिया? वो बोलने वाला भी गलत है और ऐसा सोचने वाला भी गलत है. बिकॉज ठीक है यार, निंदक के साथ रहो जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारी गलतियां निकाले. हमेशा जो तुम्हारी गलतियां निकाल सकता है उससे ही तो हम सुधर सकते हैं. ये हम भी कहते हैं. आज मैं यहाँ तक क्यों आ पाया? क्योंकि मैंने अपने मेंटर को, मेरे गुरु को हमेशा कहा है, टेल मी सर वेयर आई एम रॉन्ग, देन आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. ये एक तरीका है. और गुरु भी ऐसे ही कि बेटा दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस व्हाट यू आर सपोज्ड टू इम्प्रूव. तो स्टाइल होता है दोनों के बीच का रिश्ते में. लेकिन अगर ये सेंसिटिव है तो सुने, आपका इंटेंशन था उसको सुधारना, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट करके दिखाएगा. इससे बहुत सारे इंसिडेंट मैंने पहले ऑब्जर्व किए हैं. सो दिस इज अ रॉन्ग डी व्हिच नीड्स नॉट टू बी मेक. इसको नहीं बनाना है. व्हाट वी डोंट एडवाइस, ये डी नहीं होना चाहिए. ये सेकंड डी भी नहीं होना चाहिए. ये सेकंड डी इज आल्सो डेंजरस. ये वी स्टार्ट हियर. ध्यान से देखना. अभी पेन ऊपर से स्टार्ट होता है, ऊपर से नीचे आता है, फिर लेफ्ट में कर्व बनाते हुए जाता है. वाई में कैसा कर्व बनाया था लेफ्ट की तरफ, इसको क्लॉक कहते हैं. अगेन शो इट वंस अगेन. ये ऊपर से आएगा, नीचे आएगा और लेफ्ट में कर्व बना के इसको कंप्लीट करेगा. इस लूप को, इस कर्व को कंप्लीट करेगा. तो ऐसे जो डी बनाते हैं, दे आर सेल्फ क्रिटिकल. वो खुद को चीट करते हैं. खाना नहीं खाएंगे, घंटों खड़े रहेंगे, खुद को पनिश करेंगे, दूसरे के चैलेंजेस भी अपने सर पे ले लेंगे और खुद को तकलीफ देते रहेंगे. अभी उसने कुछ नहीं किया तो ठीक है मैं कर लूंगा, वो नहीं कर रहा तो चलो ठीक है मैं कर लूंगा. तो दिस पीपल विल पनिश देमसेल्फ बिकॉज उनको पनिशमेंट भी मिला रहता है, तो खुद को पनिश करने में उनको बहुत अच्छा लगता है. सो दिस डी इज ऑल्सो नॉट गुड. ये चीटिंग सेल्फ वाला डी है. खाना नहीं खाने से लेके घंटों खड़े रहने से, खुद को पनिश करना, नहीं सो के दिखाना, एंड चीटिंग देमसेल्फ. दैट इज हाउ इट इज. सो पीपल डू चीट देमसेल्फ बाय पुटिंग सच टाइप ऑफ डीज. सो विच इज द परफेक्ट डी? चलो ये देखते हैं सब लोग ध्यान से. परफेक्ट डी, व्हाट वी एडवाइस. क्योंकि मैं हमेशा कहा कि क्या परफेक्ट है वो मैं आपको बताता रहूंगा. तो यहाँ पे ये डी कैसा बनता है सब लोग ध्यान से देखेंगे. वी स्टार्ट हियर. देखो यहाँ से पेन आपका स्टार्ट होता है. अभी ये लूप बनेगा, हाँ ये ऐसा कर्व बनेगा फर्स्ट वाले की डी के जैसे, ऊपर जाएगा और बगैर लूप बनाए उसी को रिट्रेस करके नीचे लेकर आए. और ये डी बनाते टाइम स्टेम थोड़ा मिडिल जोन से डबल होना चाहिए. स्टेम थोड़ा मिडिल जोन से डबल होना चाहिए. शो इट वंस अगेन.
ये ऐसा अपना कर्व बना, ऊपर गया और ऊपर से उसी लाइन को रिट्रेस करके आया. सो द पर्सन इज नॉट सेंसिटिव, उसका सेंसिटिविटी जो है उसने ब्रेक कर दिया. नाउ इज ओके. और स्टेम परफेक्ट है, स्टेम परफेक्ट है तो इंटेलेक्ट चलता है, इंटेलेक्ट चलता है तो ठीक है आराम. ओके, आप मुझे बताइए सर मैं अपने आप को कैसा इंप्रूव कर सकूं. तो उसके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो निकल जाती है. एंड ही विल बी अ वंडरफुल पर्सन, विल ऑलवेज ट्राई टू लिसन to the other person, and if they will correct also, they will correct themselves. That is how his deed to be written. Now coming to the last and the most important alphabet of T. इसके बाद और 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, and the session we will finish here, because since we have started, I want you to know every possible parameters which can be rectified in your handwriting, which can bring changes. Now T is a very very important alphabet. 80% thing can be observed in T. यानी कि आपका टी अगर परफेक्ट है तो 80% काम हो गया. कितना टक्का? 80% काम अगर आपका हो जाता है अगर टी परफेक्ट है तो. लेट अस सी कि टी के वैरायटी, टी के तो 51 वैरायटीज है. हम कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज डिस्कस करेंगे. सो दिस इज टी. टी हैज टू पार्ट्स, द स्टेम एंड द क्रॉस बार. स्टेम है और क्रॉस बार है, स्टेम है और क्रॉस बार है. सिंपल है. वापस से दिखाऊं व्हाट इज टी. So T is a combination of two things, the stem and the crossbar. अब सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना. ये जो स्टेम है इसका कर्व कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कर्व ऊपर की तरफ आना चाहिए. कुछ लोग नीचे ही छोड़ देते हैं, which is wrong, which is wrong. कंप्लीट टी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बाकी सब गलत है. because I cannot discuss every single T. It should be complete. and क्रॉस बार होता है इसके ऊपर. So let us see the next one. एक हम लोग देखते जाते हैं. अभी एक एक करके आप सब लोग ध्यान से देखना. सी द फर्स्ट टी, सी द फर्स्ट टी. ये हमने स्टेम बनाया और पेन जहां पे कर्व खत्म हुआ वहां से पेन उठा एंड वी गो अप एंड वी पुट अ क्रॉस बार देयर. तो ऊपर डाला. सो क्रॉस बार lying at the top, cross bar at the top. See the second one. ये मैंने स्टेम बनाया, कर्व जिधर एंड होता है वहां से पेन उठाया एंड क्रॉस बार एट द मिडल, क्रॉस बार एट द मिडल, बीच में डाला मैंने. नाउ सी द थर्ड वन. ये मैंने कर्व बनाया, ये स्टेम बनाया, कर्व कंप्लीट हुआ, वहां से पेन उठा एंड क्रॉस बार लाइन लो, क्रॉस बार लाइन लो, एकदम नीचे गिर रहा है क्रॉस बार. So what it is, my friends, this is connected to your goals in life. ये आपके goals of life है. सिंपल है. जो एकदम ऊपर डालते हैं उसके goals बहुत हाई होते हैं, हाई goals in life. जो बीच में डालते हैं वो एवरेज goals in life. जो एकदम नीचे डालते हैं they have low goals in life, they have low goals in life. यानी कि ऑलमोस्ट नो गोल्स समझ लो. एंड व्हाई इट इज कनेक्टेड इज ओनली बिकॉज जिंदगी को सही मकसद, एक मुकाम तब मिलता है जब लाइफ में गोल्स बहुत हाई होते हैं. अपने हिंदू धर्म में, अपने इंडियन कल्चर में पैसे को एक देवी का नाम दिया गया है जिसका नाम है महालक्ष्मी. अगर सब लोग बोलते हैं पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, और महालक्ष्मी की पूजा होती है, तो महालक्ष्मी का मतलब ध्यान से सुनना, महालक्ष्य, महालक्ष्य त्याच्या नंतर मी, मतलब महालक्ष्य, उसके बाद मैं. तो पैसा कमाने के लिए भी आपके पास बड़ा लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है. तो यू हैव टू रेज योर बार्स, यू हैव टू रेज योर बार्स. क्रॉस बार ऊपर गिरना चाहिए और हाई गोल्स होने चाहिए. जिसके गोल्स हाई होते हैं उनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत हाई होता है, खुद पे विश्वास भी बहुत बढ़ जाता है, सब चीज अच्छा हो जाता है, बीमार भी नहीं पड़ते. बिकॉज सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है तो अपने आप को इतना परफेक्ट समझते हैं कि इम्यून सिस्टम भी उसी लेवल पे स्ट्रांग हो जाता है. जिसका बीच में गिरता है एवरेज गोल्स इन लाइफ, एवरेज गोल्स इन लाइफ, ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक है. और जो एकदम नीचे डालते हैं, एकदम नीचे डालते हैं तो हफ्ते में बीमार रहते हैं, 15 दिन में इनकी बीमारी आ जाती है, फिर सर्दी का. बिकॉज इम्यून सिस्टम, सेल्फ एस्टीम जिसका लो है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता, एंड दे विल अट्रैक्ट डिसीजेस आल्सो. जिसका लो टी बार है
उसके लाइफ में गोल ही नहीं है। एंड एवरीथिंग माय फ्रेंड इज कनेक्टेड टू द गोल्स इन लाइफ। 1984 में हार्वर्ड में सर्वे हुआ था, बहुत सारे बच्चों से पूछा गया था आप में से कितने सारे बच्चों की लाइफ में गोल्स है, तो दे वर शॉक्ड टू नो कि 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स इन लाइफ। 13% हैड गोल्स बट हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड मतलब सेकंड वाले, कभी करते, एवरेज गोल, कभी करते कभी नहीं करते। 84% तो थर्ड वाले है ही नहीं, मतलब वो ना के बराबर है, इतना नीचे कि वो ना के बराबर। उतना तो बेसिक खाना पीना तो माँ बाप ही दे देते हैं हमको, तो क्या करने का पढ़ के। ऐसा हम लोग का लो गोल होता है, जिसका एवरेज होता है तो 13% है हाफ हार्टेड गोल, एंड 84 प्लस 13 is almost 97. तो 3% people had a very clear goal in life. 1984 का सर्वे है, 3% people had a very clear goal in life, my friends. Why this survey was conducted? ध्यान से सुनना। Exactly 10 साल के बाद, 1984 से 10 साल के बाद 1994 में इन बच्चों को ढूंढा गया। तभी तो लोग 16, 17, 15 साल के थे, 10 साल के बाद 24, 25, 27 साल के हो गए रहेंगे। ये कहीं ना कहीं काम वाम करते रहेंगे, खुद का व्यवसाय चालू किए रहेंगे। इन्होंने पूरा ट्रैक डाउन किया इन पूरे बच्चों को, एंड दे वर शॉक्ड टू नो इसमें सबसे कामयाब वो 3% बच्चे थे जिनके लाइफ में गोल्स एकदम क्लियर थे। आगे सुनना, जरूरी नहीं था कि उन्होंने जो 10 साल पहले गोल डाला था वही लक्ष्य उन्होंने 10 साल के बाद अचीव किया। It's not necessary whatever goals you have taken or dreamt about last 10 years back, the same thing you might have done or achieved it. तो क्या है, गोल्स का होना बहुत जरूरी है, हाई गोल्स का होना बहुत जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो अचीव हुआ नहीं हुआ, देयर शुड बी हाई गोल इन लाइफ माय फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मैंने डिसाइड किया था कि 80 प्लस जाऊंगा और मुझे साइंस लेना है, मैंने लेकर आया। आई टुक साइंस एंड 11, 12 साइंस में मुझे बहुत पढ़ाई करनी थी, इंजीनियर बनना था। बोर्ड एग्जाम के पहले ही 6 महीने पहले मेरा राइट साइड काम करना बंद कर दिया। डायस्टोनिक राइटर्स क्राइम करके एक बीमारी मुझे आ गई। 3 महीना बाकी है बोर्ड एग्जाम को, मैंने अपने लेफ्ट हैंड से बोर्ड एग्जाम को लिखा, प्रैक्टिस किया 3 महीने पहले। 67% मैंने 77 पीसीएम में लेकर आया, 67% मैंने एग्रीगेट लेकर आया लेफ्ट हैंड से लिखकर। गोल्स बहुत हाई है। इंजीनियरिंग के लिए सीट नहीं मिला, फिर बीएससी किया, एमएससी कर रहा था, तो माय ब्रदर एक्सपायर्ड एंड टू लीव माय स्टडीज एंड आई केम इनटू टीचिंग प्रोफेशन। तो 20 years बैक आई केम इनटू टीचिंग प्रोफेशन। गोल्स बहुत हाई रखा मैंने, और आज मैं लीड करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें 2500 कोचिंग क्लासेस मुंबई में। आई एम द सेक्रेटरी, आई एम इनटू मुंबई यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन, आई एम इनटू मेनी थिंग्स। गोल्स बहुत हाई है, गोल्स आर वेरी हाई। आज भी गोल्स बहुत हाई रखता हूँ। कितनी एनर्जी फ्रॉम मॉर्निंग माय चाइल्ड, माय फ्रेंड, दिस इज माय 3rd सेशन व्हिच आई एम टेकिंग सिंस मॉर्निंग, और इतना एनर्जी मेरे अंदर होता है बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने। एंड वी डोंट फॉल सिक आल्सो माय फ्रेंड्स। गोल्स का हाई होना बहुत जरूरी है। Let us see few samples here and there and let us conclude today's session here. टी में कुछ सैंपल्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सैंपल्स होते हैं। कुछ लोगों का टी का बार पीछे गिरता है, राइट, लेफ्ट। कुछ लोग का टी बार जो है क्रॉस बार बिहाइंड द स्टेम। कुछ लोग का टी बार जो है ऑन द स्टेम गिरता है। कुछ लोग का टी बार आगे की तरफ गिरता है, सेम लाइक वो आई का जे का डॉट है। और कुछ लोग का टी बार नहीं गिरता, वो मैंने बताया नहीं है। इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक आई का डॉट पीछे गिरना, आई का डॉट आगे गिरना, और आई का डॉट नहीं गिरना, ठीक है। सो टी बार पीछे गिरना, माय फ्रेंड्स, अगेन बिहाइंड रियलिटी, है ना। प्रोकास्टिनेशन, पीछे गिर रहा है, बिहाइंड रियलिटी। तो स्टेम पे गिर रहा है तो एट रियलिटी, प्रेजेंट में जी रहा है। आगे गिर रहा है अहेड ऑफ रियलिटी, अहेड ऑफ रियलिटी। ये तीनों हमने पहले भी देखा है। सो विच इज अ परफेक्ट टी, ध्यान से देखना। हाउ टू राइट अ परफेक्ट टी, हाउ टू राइट अ परफेक्ट टी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। व्हाट वी एडवाइस, सिंपल, ये आपका स्टेम और क्रॉस बार इधर गिरना चाहिए, क्रॉस बार ऊपर, इट शुड गो हाई, महालक्ष्मी, एकदम ऊपर गिरना चाहिए। सो क्रॉस बार एकदम ऊपर गिरता है तो क्रॉस बार एट द टॉप, क्रॉस बार एट द टॉप, cross bar little long on the stem, पीछे नहीं आगे नहीं, cross bar on the stem, cross bar should be longer, cross bar should be longer, the sides left के तरफ and right के तरफ equally approximately equal रहना चाहिए। left is past and right is future, तो past से सब learning को लेते हुए प्रेजेंट से गुजरते फ्यूचर की तरफ। सो पास्ट लर्निंग को लेते हुए फ्यूचर की तरफ। जो पीछे डालते हैं वो पास्ट में रहते हैं, जो आगे डालते हैं तो पास्ट की लर्निंग उनके दिमाग में नहीं आती। ये लोग हैं जो बैलेंस्ड रहते हैं,
जो पास्ट की लर्निंग को लेते हुए फ्यूचर के तरफ जाते हैं। तो इट इज शुड बी लिटिल लॉन्ग। सी ए क्लासिक एग्जांपल हियर, इधर एक वर्ड लिखा है मैंने, राइट, WRITE। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आई के ऊपर डॉट परफेक्टली गिरा हुआ है, और टी का स्टेम बड़ा है, टी का स्टेम मिडल जोन के हिसाब से डबल है, क्रॉस बार एकदम हाइट पे है, क्रॉस बार लंबा है, और क्रॉस बार जो है लॉन्ग है और लंबा है और हाइट पे है, और बैलेंस्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, दैट इज अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट वी एडवाइज व्हाइल राइटिंग टी बार। आप प्रैक्टिस करते करते लिख सकते, अच्छे एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स लिखते हुए प्रैक्टिस करो। माय फोकस एंड concentration in my studies is increasing day by day. I am able to remember and recollect whatever I have studied. I am able to maintain wonderful relationship with my parents and my teachers and everyone. I can see wonderful career ahead. I can see wonderful life ahead. ऐसे 4, 5, 8, 10 अच्छे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। वो सेंटेंस बनाते 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 टी बार को ऊपर खींचिए, क्रॉस बार ऊपर डालिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक वक्त में एक ही चीज करना, पहले 20-25 दिन 21 दिन तक आप टी बार को ऊपर करना, फिर आप जो स्टेम वाले अल्फाबेट्स को ऊपर करना, फिर डॉट्स पे प्रैक्टिस करना, फिर डी को निकालना। ऐसा करते करते 3 to 4 मंथ्स अगर आपने इसको परफेक्टली प्रैक्टिस किया, 30 मिनट्स 40 मिनट्स ब्लैंक पेज पे, प्लेन पेज पे नहीं, रूल्ड पेजेस पे नहीं, ब्लैंक पेजेस पे अगर आपने प्रैक्टिस किया 30 मिनट्स 40 मिनट्स बाय राइटिंग स्टेटमेंट्स which includes all these changes, one change at one time kar lena and see the difference what you can see in your handwriting, my friends. Let us see the last one, GJYZ। ये लास्ट वाला, ये फ्री में, मतलब मोबाइल के साथ चार्जर फ्री है, तो एक और मैं दे रहा हूँ आप सब लोगों को। GJYZ में जो है लूप का होना बहुत जरूरी है। जी में लूप, जे में लूप, वाई में लूप एंड जेड में लूप, ये लूप परफेक्ट होना चाहिए। जिसके भी GJYZ में परफेक्ट लूप होते हैं, दे आर इनटू वेरी गुड हेल्थ, फिजिकल ड्राइव, अच्छे हेल्थ फिट बच्चे रहेंगे, जो फिजिकली हेल्थी रहेंगे, स्पोर्ट्स में सब चीज में बहुत आगे रह सकते, बिकॉज द फिजिकली लोअर जोन इज रिलेटेड टू योर लेग एंड ऑल दी organs and desires and everything. तो physically fit रहेंगे, and money and relationship will stay. पैसा और रिलेशनशिप को ठहरने के लिए, पैसे को ठहरने के लिए पूंजी का होना बहुत जरूरी है। पूंजी, अशरफिया हम एक ऐसा पूंजी में रखते थे, ऐसा पूंजी में रखते थे, सेम वे अशरफियों को रखने के लिए पूंजी होती थी, सेम वे रिलेशनशिप और मनी को ठहरने के लिए सैक का होना चाहिए। और सब लोग ध्यान से सुनना, कोई भी चीज को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, कोई भी रिलेशनशिप को, पैसे को सेव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। तो ये लूप बनाने के लिए भी पेन को एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ऊपर की तरफ उसको डायरेक्शन करना पड़ता है, तब जाके ये लूप्स फॉर्म होते हैं। सो रिलेशनशिप एंड मनी को स्टे करने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, नहीं उठ पाते। तो जिसका लोअर जोन में लूप नहीं है, इनकम्प्लीट लूप है, परफेक्ट लूप नहीं है, तो पैसा आएगा जाएगा, रिलेशनशिप आएगा जाएगा, फिजिकली फिटनेस आएगा जाएगा, कुछ भी परफेक्ट नहीं रहेगा। 4 दिन जिम करेंगे फिर छोड़ देंगे, 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे छोड़ देंगे, कंटालपना, लेजीनेस, तामसिक मन लोअर जोन से आएगा। परफेक्ट लूप जो रहेगा वो फिजिकली फिट रहेगा, मेंटेन करेगा रिलेशनशिप को। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर throughout this last 1.5 hour. Whatever I shared, you have to observe it, practice it, and I have said every single thing which can be। ये ऐसा नहीं है कि ये इसके अलावा और कुछ है, ऐसी बहुत सारी चीजें, बट मैंने आपको पूरा साइंस ही दे दिया। मैंने कुछ दिन पहले ये सेशन लिया था, तो काफी सारे जन ने फोन किया, सर व्हाई आर नॉट चार्जिंग, बिकॉज दिस इज योर शेड एवरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर तो नहीं, हैंडराइटिंग के बारे में तो सब चीज मैंने बता दिया। दैट इज हाउ we can bring those changes into the handwriting and get those practices done, and you'll be able to change your personality by changing your handwriting. So that is from my side. Over to the host or over to the people of the school to conclude. Thank you. Thank you so much, sir. On behalf of IAS, I would really like to thank you, and of course our Chancellor, sir, Engineer B.S. Yadav, and our Group Director, ma'am, was also attending the session. So thanks to the rapport between you people, we are getting to, have you witness your sessions over and over. So thanks to our Chancellor, sir. Also, he's also a very big admirer of your philosophy and this science. So students, I think you have all really benefited from this, right? So many things that sir has told us, and every time we get to learn something new.
So thank you so much, sir, for being associated with IES, and on behalf of our management, on behalf of our staff, on behalf of the students and the entire population of Bhopal, everybody who's watching. Thank you so much for coming here virtually, and hats off to your energy, sir, that continuously for 2 years, 2 hours, sorry, you've been speaking, and not one moment has been dull. It's been very, very interesting. Thank you so much. Thank you so And much. to your team also who has supported all our Yes. IAS staff and IAS team. Thank you very much. And thank you for this opportunity. Thank you to our, we can say, the Chancellor, B.S. Yadav sir, who has been so great and kind to call me back and let us have this session here for the kids. This is how the initiative of IS Institute I have seen, they're always in the forefront. What best they can give to the kids, what best they can do for the parents and the teachers and the students. That is what is their intention. Thank you once again. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. With your support and effort, definitely IAS will go to new heights. Thank you. Thank you. Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much.